Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your life 1 year from now. What kind of things you're involved in, what you're doing 1 year from now, your reality 1 year from now is बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So पहला कार्ड है फ्लो. पाइल 1 इज फ्लो, पाइल 2 फुलफिलमेंट, पाइल 3 बिगनिंग्स. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको वार्म फील करा रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास हो, तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सेलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the flow card here, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम एक एनर्जी चेक करेंगे. आपकी एनर्जी 1 year from now. What are you going through 1 year from now? What is happening in your life 1 year from now? What's your energy like? Okay. We have experiencing. All right. Okay. We have understanding. Okay. End of the deck, maybe we have adventure. All right. Okay. I definitely see that you are experiencing new things. New things are coming very easily to you. मतलब एक नया लाइफस्टाइल, एक नई जगह, नई चीज़ें, नया सब्जेक्ट, नई तरीके के काम. You are experiencing newness. All right. Something new. And it's like an adventure for you. All right. Maybe like earlier in life, you were this caged bird, or you felt like that लाइफ बड़ी मोनोटोनस है. अभी भी लाइफ कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो सकती है. आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नहीं गए हो. 1 year from now, I see that you are going out of your comfort zone and you are planning to do that for a while. All right. And 1 year from now, आप अपना पिंजरा छोड़ या आप अपना कंफर्ट जोन छोड़, जो आपने अराउंड अपने रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, उसको तोड़ आप एक नई उड़ान भरते हैं, आप एक ऊंची छलांग मारते हैं. एंड इट्स लाइक कि एक नया एडवेंचर है ये आपके लिए. लाइफ फील्स लाइक एन एडवेंचर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. All right, and you're just experiencing things. I do believe pile 1 कि आप एक different ही जगह पर हैं. मतलब आप जहाँ अभी हैं वहाँ नहीं है. 1 year from now, you're at a different place, maybe a different state, city, or maybe in a different country. All right, and you're just experiencing things. Everything is new. People are new. Their language, their thought process, their cuisine, everything is very different. All right, and you're taking baby steps there. As we see a child with the adventure card, you're taking baby steps there.
आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, एक न्यू सिस्टम या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को आप फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग चलने की कोशिश आप कर रहे हैं. And you're happy. Like, I don't see that you are stressed or you're like you're feeling way out of your comfort zone. ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है. मतलब comfort zone तो आप छोड़ेंगे, नई चीज़ें आप जो हैं एक्सपीरियंस करेंगे, बट इट डजेंट फील दैट यू आर इन डेंजर. ऑल राइट, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है. इट्स नॉट दैट यू आर इन अ डेंजर सिचुएशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एज वी सी अ चाइल्ड, जहाँ पर बच्चा है वहाँ उसके आसपास कहीं माँ बाप भी उसके होंगे, उसका केयर टेकर भी, उसका गार्डियन भी होगा. All right, so I do see that there are people who will take care of you, and you will have company in life for sure. 1 year from now, there are going to be people around you who will love you, you will love them, they will cherish you, you will cherish them. All right, so जैसे एक बच्चे को हर कोई प्यार करता है, बच्चे से कोई मतलब लड़ाई नहीं करता है, या बच्चे से हर कोई जो है नाराज़ नहीं होता है ना, उसी तरह लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं. ऑल राइट, ना लोगों की आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. ऑल राइट, यू आर जस्ट in a free flow mode 1 year from now. You're experiencing life, you're experiencing different places, things, weather, maybe even. बहुत डिफरेंट लाइफ आप जी रहे हैं अभी से. कुछ और अगर हमें इन्फॉर्म, वी हैव द हीलर कार्ड, पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग. सो आई डू सी विद द हीलर एनर्जी दैट लाइफ इज हीलिंग यू. All right, literally life is healing you. You went through a lot of trauma early in life, and I do feel, pile one, that you guys were born in साढ़े सती. आपके यानी मून के पिछले घर में या मून के आगे वाले घर में आपके बर्थ चार्ट में, या मून के साथ सैटर्न कंजंक्ट होगा, या आगे पीछे वालों घरों में मून के सैटर्न होगा, जो कि ये शो करता है दैट यू वर बॉर्न इन योर साढ़े सती, विच शोज कि यू वर लिटरली बॉर्न इन अ वॉर जोन. यू वर बॉर्न इन अ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन. यानी आपका परिवार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था टू हैव अ child, but they had you somehow, or your family was going through some financial bad situation when you were born, but after your birth things would have started to become better, या फिर कुछ समय बाद things would have started to become better, but या एक फाइनेंशियल क्रंच से कहीं ना कहीं वो डील कर रहे होंगे, या घर में बहुत टेंशन स्ट्रेस रहता होगा आपके बर्थ के समय, आपके बर्थ से जस्ट पहले, बिकॉज यू वर बॉर्न इन साढ़े सती. पहले साढ़े सती ना माँ बाप पर पड़ती है, नेटिव की दूसरे साढ़े सती उसे खुद भुगतनी पड़ती है, नेटिव को तीसरी साढ़े सती भी आती है तो वो उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है. So that's how things are. All right, then we have networker. Of course, with the networker card, it does shows that you are creating a new network. You are somehow getting in contact of lot of new people 1 year from now. I did told you, like, I do feel, pile number one, you guys are not really staying or living where you are right now living. All right, many of you are making new friends, making new circle, meeting new people, having good acquaintances. All right, it's gonna be like this. It's going to be like this. Many of you can be students. Maybe you're 1 year from now you're going to a university, और वो यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में होगी, एक डिफरेंट कंट्री में होगी, तो बिल्कुल नया इन्वायरमेंट है, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू get into it. You're experiencing the environment, you are feeling healed as well, because जहाँ पर शायद अभी हैं आप, you are not that satisfied with it, and yes, you deserve the best, pile number one. And 1 year from now you're happy, जहाँ पर भी हैं, नई जगह पर हैं, but you're feeling happy. I do feel many of you are gonna work in IT sector or already are working in IT sector. Many of you can be the people, मतलब राहु वाला एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पाइल में. पाइल नंबर 1, राहु होता है न्यू एज टेक्नोलॉजी, राहु होता है सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, टेक इंडस्ट्री. ऑलराइट, उसमें आप समहाउ काम करते हो नजर आए. हो सकता है आप एक कोडर हो या एआई सीख रहे हो. ऑलराइट, आने वाले 30 to 35 ईयर इज द ईयर्स ऑफ केतु ओनली, इज द ईयर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली. राहु इन जनरल टेक है, बट उसका एक जो रिफाइंड वर्जन है वो केतु है, वो है एआई. तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें सीखेंगे, उससे रिलेटेड आप काम करेंगे.
All right, and because Rahu foreign lands hai, so many of you I see are going to foreign lands or are going from one state to the other. Rahu represents different culture, different ethnic backgrounds. All right, तो आप उन लोगों से आपका connection बनेगा. Many of you can be healers. राहु जो है वो pharmaceutical industry भी है, chemical industry भी है. So many of you may go into biotech and will make new vaccines, will understand the DNA better. All right, can be into research. ऑलराइट, बिकॉज केतु इज रिसर्च. तो राहु केतु वाली चीज़ें यहाँ बहुत है. केतु इज ऑल्सो हीलर. केतु इज अ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल. तो आप कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 यू गाइज आर गोना बी द हाईली स्किल्ड पीपल. केतु वाले प्रोफेशन होते हैं सीए, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, पीपल हु और सर्जन्स, कोडर, कोडिंग से रिलेटेड काम करने वाला, टेलर वाला काम कर रहे हैं. ये सब जहाँ पर दिमाग की खपत बहुत ज़्यादा है, जहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, या जहाँ पर आपको प्रिसाइज होना है, परफेक्शनिस्ट होना है, उस तरह के काम आप करेंगे. ऑल राइट, उस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे 1 year from now. Many of you of course will be doctors, will be healers, will be tarot card readers, will be astrologers, will be Reiki healer, crystal healer, or some kind of healers you are going to be. Some of you can be massage therapists as well. All right, so ये चीज़ें, ये careers आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. Something more if we can get कि where are you living, specifically like where are you living, pile number 1 year from now. We have Page of Cups. Again, it can happen that you may live in Canada and somehow again a place जहाँ पर waterfall हो, Niagara Falls. So again, many of you may live in Canada, or many of you literally may live in a place जहाँ पर again एक water body हो, ocean, river, stream, pond हो. ऑल राइट, विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी आप जहाँ रहेंगे ना 1 year from now, वहाँ पर यूथ बहुत होगा. पेज जो है बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, यूथ को रिप्रेजेंट करता है. सो वेयर एवर यू आर गोना लिव, वेयर एवर यू आर गोना वर्क, दे आर गोना बी यंग पीपल. You're going to be surrounded with the youth. You're going to be surrounded with the people who are either teens or are in their 20s. All right, somehow youth के साथ आप surrounded होगे, ऐसी जगह पर आप होगे. करियर के बारे में अगर हमें कुछ और पता लगे 1 year from now, what are you doing, pile 1? What are you doing? We have 7 of Wands. 7 of Wands here gives me this message that you are going to try new things. You are going to come out of your comfort zone. आप एक ऊंची छलांग मारते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. All right, trying different things out, coming out of your comfort zone. And like you are somehow involved in multiple careers 1 year from now. जैसे some of you can still be students 1 year from now, learning something and also working part time somewhere, जो कि आपकी डिग्री से बहुत अलग टाइप का पार्ट टाइम जॉब हो, बट बहुत अलग एक जॉब आप कर रहे हैं. मतलब आप एक हाई मल्टी स्किल्ड इंडिविजुअल भी नज़र आ रहे हैं. ऑलराइट, मे बी यू बेबी सिट अदर पीपल्स चिल्ड्रन. That's your part-time job. If you are someone who's already an adult and already have done their education, still I see 1 year from now you are going to be taking some education. You're going to take some course. आप कुछ PhD करते हैं, मास्टर्स डिग्री हासिल करते हैं, किसी कोर्स में आपको अपने आप को इनरोल कराएंगे और कोई स्किल डेवलपमेंट पर आप स्टिल ध्यान देंगे, ऐसा नज़र आ रहा है. जुपिटर मरकरी कंजंक्शन वाले लोग भी हैं इस पाइल में. जुपिटर मरकरी कैन बी कंजंक्ट टुगेदर, जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. या जुपिटर के आगे मरकरी हो अगले वाले घर में मरकरी. दिस काइंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन शोज यू आर गोना बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. चाहे आप अपनी 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, यू आर स्टिल गोना गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन सम कोर्स. विल ऑलवेज बी समवन जो कुछ नया सीखना चाहता है, हायर एजुकेशन करना चाहता है, कुछ अपना स्किल्स से रिलेटेड अपना खुद का काम करना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग. तो आप उनमें से हैं पाइल नंबर 1. एंड आई डू सी 1 year from now आप मल्टीपल स्किल वाले जॉब्स आप करते हैं. मतलब आप क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं, आप टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑलराउंडर बन रहे हैं. सम ऑफ यू में इवन स्टार्ट योर ओन बिजनेस 1 year from now, बट बिकॉज इट कैन हैपन कि आपको ऐसा लगे कि मैं हर काम खुद ही कर सकती हूँ. शुरू में मेरे को खुद ही करना है हर काम. आई डोंट वांट टू हायर अदर पीपल, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. सो आप हर टाइप का काम, चाहे वो मार्केटिंग का काम है, चाहे वो सच में उस काम को करना है, टेक्निकल काम है,
डिटेल ओरिएंटेशन वाला काम है, वो सब आप मतलब खुद कर रहे हैं, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स ये आपके फाइनेंसेस के लिए आया 1 year फ्रॉम नाउ। किंग ऑफ पेनिकल्स इज़ अ वेरी स्मार्ट कार्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये शो करता है कि सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ती है, पैसे की वैल्यू घटती है हमेशा, दिस इज़ अ फैक्ट। तो पैसे की वैल्यू घटती है, बढ़ता क्या है, गोल्ड सिल्वर मेटल्स की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। ऑल राइट, सो विद द किंग ऑफ पेनिकल्स एक स्मार्टनेस है। जो भी पैसा आप अर्न करते हैं और अच्छा अर्न करेंगे, यहाँ ये भी दिखता है विद द किंग ऑफ पेनिकल्स एज वी सी द ग्रेप्स। तो अंगूर अब खट्टे नहीं है, 1 year फ्रॉम नाउ यू आर अर्निंग वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। जैसे यहाँ पर वी सी ना कि ग्रेप्स का पूरा गुच्छा है। सो एक पेमेंट भी अगर आती है तो वो भी बहुत अच्छी पेमेंट, हैवी पेमेंट होती है ना। तो उस पेमेंट को आप सही वे में यूटिलाइज करते हो, जो पैसे आप कमाते हैं उसको आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, साथ के साथ इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और पैसा ग्रो करते चले जाते हैं। आप एसेट्स बनाते हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं क्रिएट करेंगे। 1 year from now, your focus is not going to go towards that, hey, I need to buy a car for myself. It's not going to be like this. 1 year from now, your focus will go towards, I need to create assets. अब वो चाहे लैंड है, चाहे वो मेटल्स है, आप इन्वेस्टमेंट्स करते चले जाएंगे और आप ऐसे अमीर होते चले जाएंगे। एंड यू आर गोना बी दैट पर्सन इज गोना ब्रिंग अ बिग चेंज इन द फैमिलीज financial self, in the family's financial future. You are going to be that person who will take your family from rags to riches. You are that person who is going to create a legacy through your empire, through your business, through your कर्म जो आप करते हैं, एक्शन जो आप लेते हैं, वो एक लेगेसी बनेगा। आप वो इंडिविजुअल बनेंगे जो अपने परिवार का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे? मेहनत से इम्प्रूव करेंगे, बट स्मार्ट वर्क से इम्प्रूव करेंगे। यानी पैसे को साथ के साथ इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, एसेट्स क्रिएट करते चले जाते हैं। किंग ऑफ पेनिकल्स दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। किंग ऑफ पेनिकल्स जो है प्रोवाइडर मेंटालिटी है, दैट आई वांट माय फैमिली टू बी हैप्पी, आई नीड टू प्रोवाइड देम द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। चाहे मैं इतना कंफर्टेबल ना भी हूँ, बट आई वांट टू प्रोवाइड समथिंग बिग टू माय फैमिली। तो अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चते हैं, एसेट्स खरीदते जाते हैं और उससे आपके पैसे आते चले जाते हैं। ऑल राइट, और उससे आप उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपने परिवार का भी आप टेक केयर बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऑफकोर्स अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अच्छे कपड़े, है ना। तो बट वही है कि यू आर गोना बी दैट पर्सन विद द किंग ऑफ पेनिकल्स कि जहाँ पर पैसे खर्चने वहाँ शाह की तरह खर्चेंगे और जहाँ पैसे लगता है कि इधर तो वेस्ट ही होना है, तो वहाँ पर एक पैसा नहीं आप लगाएंगे। तो यू आर गोना बी इन अ ग्रोथ मनी वाइज, इन अ ग्रोथ माइंड सेट 1 year फ्रॉम नाउ। दिखावेबाजी आपसे नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं ना शोशेबाजी, वो आपसे नहीं होगी। आप कहेंगे कि आई एम समवन जो सॉलिड चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे मेटल की, मतलब जिसमें पता ही है कि ग्रो ही होगा। स्टॉक मार्केट, आई डोंट सी मैनी ऑफ यू विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग 1 year फ्रॉम नाउ, बिकॉज यू विल बी लाइक कि इट इज़ क्वाइट फ्लक्चुएटिंग। और समय भी ऐसा है जहाँ पर आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट हियर, आई वांट समथिंग सॉलिड। तो ये नज़र आ रहा है। मेनी ऑफ यू आर बाइंग एग्रीकल्चरल लैंड्स और आर बाइंग प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। मतलब फ्लैट्स नहीं खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे। ऑल राइट, सो ये नज़र आ रहा है। अगेन एक जुपिटेरियन एलिमेंट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर ग्रोथ को ही, फाइनेंशियल इन जनरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे मनी वाइज, वेल्थ वाइज, बट ज़िंदगी को वेल्दी बना रहे हो आप। मतलब ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस आप कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आता है। जुपिटेरियन वेल्थ आपके पास आ रहा है, यानी गुड हेल्थ आ रही है और धीरे धीरे ग्रोथ होता है मनी वाइज, या लाइफ की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। एकदम से चीज़ें नहीं होती है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, आपका स्किल सेट और अच्छा होता चला जाता है, आपके एसेट्स अच्छे अच्छे बनते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लोगे, ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे प्लॉट लो, छोटे प्लॉट्स, चाहे वो 5 मरले की प्रॉपर्टी है, बट अगेन आप इन्वेस्ट करते चले जाओगे। वीनस से 4th हाउस में मार्स बैठा हो सकता है। 4th फ्रॉम वीनस रिप्रेजेंट्स द जॉय यू गेट फ्रॉम मनी। तो अगर 4th हाउस वीनस से 4th में मार्स है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है प्लॉट्स खरीदता रहता है, लैंड खरीदता रहता है, उसको उसमें खुशी आती है, आनंद आता है। थोड़े से पैसे हुए नहीं कि उसका कोई प्लॉट ले लिया, चाहे छोटा ही लिया, पर लिया ज़रूर। यू मे हैव सच प्लेसमेंट्स इन चार्ट।
वीनस से फोर्थ में मून है, तो आप दूसरों को उधार दे देते हो पैसे समहाउ। आपके पास पैसे टिकते नहीं, आप पैसे को पानी की तरह बहा देते हो चीज़ों में। लोग खाने पर बहुत खर्च करते हो, अगर कोई उधार मांगता है तो उसको दे देते हो, आपसे मना नहीं होता। पैसे देना ही आपको एक खुशी देता है। सो दैट्स देयर, ऑलराइट। एंड अगेन अगर आपका मून थर्ड हाउस में है तो आपको डेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट कैन हैपन दैट यू मे नॉट बी एबल टू पे दैट डेट ऑफ। सो मून, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम जब मून थर्ड हाउस में हो, ऐसा इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर बहुत कर्जा होता है, बहुत ज़्यादा, करोड़्स में, अगेन मिलियंस में। तो केयरफुल रहना चाहिए। या कई बार ऐसा नेटिव ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत डेट्स हो, मून इन द थर्ड हाउस, ऐसे नेटिव। समथिंग मोर इफ वी कैन गेट अबाउट हेल्थ, इफ वी कैन, ओके वी आर फुल। सो अभी हम यही बात कर रहे थे कि मेरे को आप जहाँ अभी हैं वहाँ नहीं दिख रहे, कहीं और ही हैं। तो फूल ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो येस, यू आर समवेयर एल्स 1 year फ्रॉम नाउ, यू आर लिटरली समवेयर एल्स। फूल आपकी हेल्थ के लिए आया है, और फूल कार्ड मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे का बॉडी कितना न्यू होता है, बेबी का बॉडी कितना नया नया होता है, न्यू होता है ना। तो फूल कार्ड एक न्यू बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। एंड तभी एक जुपिटर भी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का तत्व बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, पाइल नंबर 1, तभी आपके पाइल में भी दिख रहा है कि जुपिटर का एलिमेंट बहुत अच्छा है। आपका जुपिटर फर्स्ट, फिफ्थ या 9th हाउस में होगा। जुपिटर सन का कंजंक्शन, जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम सन, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम सन। जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन, धर्मादि कर्मादि योग जिसको कहते हैं, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन है। जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या कल्ला सैटर्न भी 9th हाउस में बैठा हो, वो भी एक तरीके से धर्मादि कर्मादि योग ही कहलाता है। तो ऐसी प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में जो कि ये शो करती है दैट यू विल सक्सीड इन योर करियर, यू आर गोना सक्सीड इन लाइफ, एंड यू आर गोना बी लकी फॉर योर फैमिली, वेरी लकी। धर्मादि कर्मादि योग वाले लोग जो होते हैं, अगर आपके जीवन में हैं तो आपका जीवन बेटर है, बहुत अच्छा है। और जब वो लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी आ सकता है। धर्मादि कर्मादि योग वाले लोग, यानी जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन वाले लोग आपके हमेशा अगर अराउंड रहें तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रहते हैं, लकी रहते हैं आपके लिए। बट इन आई फील पाइल नंबर 1, यू गाइज आर द पीपल जो धर्मादि कर्मादि योग वाले लोग हैं। You are going to find great success in life, in career, and you are going to make that financial difference in your family. All right. हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बॉडी में कोई ऐसे तकलीफ नहीं है, बॉडी बिल्कुल नई फील हो रही है 1 year फ्रॉम नाउ। हेल्थ आपका पूरा साथ दे रही है, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वाई आप अच्छा काम कर पा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फॉर योर लव लाइफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत अच्छा कार्ड है फॉर योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, क्योंकि ये शो करता है कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू new people, and those new people are having a different mindset. All right, maybe you felt that I don't like Indian men, or I don't like Indian women. Maybe it can happen 1 year from now, you fall in love with the Russian man or Russian woman, or you may fall in love with someone जो Australian woman, Australian man. तो ऐसा नहीं है कि all men are the same, all women are the same. मे भी हो सकता है डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड वाले जो men women हैं वो आपको अच्छे लगें, वो आपको वैल्यू करें। अगर अपने देश वाले नहीं वैल्यू कर रहे तो कोई और देश वाले आपको वैल्यू करें, आपको पसंद करें, आपको प्यार करें। कहीं ना कहीं वीनस राहु का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है। वीनस राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। राहु 7th हाउस में हो, क्योंकि अगेन ये राहु, वीनस मैरिज होता है और राहु फॉरेन एलिमेंट है, तो एक फॉरेन स्पाउस से, फॉरेन पर्सन से मैरिज हो, है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज कि ऐसा भी हो सकता है एक डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी वाले पर्सन से मैरिज हो वो इंडियन ही, बट एक डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी वाला हो। या अगर आप एक नॉर्थ इंडियन है और आप किसी इंडिविजुअल से मैरिज करते हो, वो इंडिविजुअल जो है साउथ के हैं, तो मतलब दैट कैन इवन हैपन, क्योंकि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, वेदर का एक बड़ा चेंज आता है, पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर, या एजुकेशन, या समहाउ माइंडसेट डिफरेंट होता है एक नॉर्थ इंडियन का साउथ इंडियन से। ऑल राइट, क्योंकि अगेन एक इंडिया इज़ इट सेल्फ, मतलब मैं तो कहती हूँ इंडिया खुद में ही एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले तो उधर ही बहुत मतलब हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो एक राहु रिप्रेजेंट समवन जो आपके खाने पीने पानी से अलग, उनका खाना पीना पानी है अलग, मतलब जगह पर अलग, वेदर अलग, लैंग्वेज, मतलब
डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट क्यूजीन जो खा के बड़ा हुआ है आपसे डिफरेंट है ना, वो राहु बन जाता है आपके लिए. सो इट कैन बी लिटरली एक फॉरेनर से आप मैरिज करें, या एक फॉरेनर से आप अट्रैक्ट हो, फॉरेनर के साथ एक रिलेशनशिप में आए, या अगेन इट कैन बी फ्रॉम समवन जो एक डिफरेंट स्टेट या सिटी का इंडिया में ही. तो ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज बहुत स्पाइसी होने लगता है 1 year फ्रॉम नाउ. मतलब यू गाइज ट्राई डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्यूजीन्स, आर ट्रैवलिंग टुगेदर, ऑलराइट. एक एनर्जेटिक शिफ्ट आता है आपके रिलेशनशिप या मैरिज में, जो कि आपकी रिलेशनशिप या मैरिज को बोरिंग से फिर से जो है पैशनेट बना देता है. Alright, you may start to get to know some new things about your partner 1 year from now, which you love, which you like. You get to know a different shade, a different, different taste from your partner. मतलब आपके पार्टनर के बारे में नई चीज़ें जानने को आपको मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है ना. सो ये नज़र आ रहा है. एंड आई डू फील यू मे बाय लाइक क्लोथ्स from brands like US Polo Sane, और जो पोलो टी-शर्ट्स जो होती है, या बस जैसे ये साइन है ना, ये इवन रेड टेप वालों का भी साइन है ऐसा. अगेन US Polo Sane वालों का भी साइन है. मतलब ऐसे ब्रांड्स आप अपने पार्टनर के लिए ख़रीदें या खुद ऐसे ब्रांड्स पहनेंगे है ना, ये नज़र आ रहा है. अगेन एक्सपेंसिव चीज़ें आप बाय करेंगे, कपड़े एक्सपेंसिव बाय करेंगे. एक्सपेंसिव मतलब इन द सेंस गुड क्वालिटी के. अगेन वो किसी और ब्रांड के भी हो सकते हैं, बट गुड क्वालिटी क्लोथ्स पे आप इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. नया आपका सेंस ऑफ स्टाइल नज़र आ रहा है. जिस तरीके से आप ड्रेसअप हो रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट. अभी से बहुत डिफरेंट है. वी हैव द जर्नी कार्ड. आई टोल्ड यू गाइज आर नॉट where you guys are at a different place. जहाँ भी अभी हैं उससे एक अलग जगह पर आप है 1 year from now. Again 1 + 0 is equal to 1 only, है ना. तो 1 year from now you're at a different place. You're on a new journey 1 year from now. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. And it can happen कि you like many of you are singles, I feel, pile number 1. तो जब आप वहाँ पर जाते हैं, you get to meet your life partner. You literally get to meet your life partner. Some of you ऐसा बहुत strongly यहाँ नज़र आ रहा है. Right, and then we have family room. Family room here shows that you're going to create your own family 1 year from now or 3 years from now. Pile number 1, you guys will have children and will have a home. जिसको आप family home कहेंगे, मतलब they are going to be children, they are going to be pets as well. You're going to be with your partner. You will have your own family. Maybe right now you don't even think about having a family. You may have no idea that do I want to get married or not. You may have no idea. But when you meet the right person, you'll be like, I want to create a family with them. I want to settle down. I want this person in my life. तो मतलब आपके सपने बदलते हैं, लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव उस पर्सन के कारण बदलता है. और फैमिली रूम यहाँ ये भी शो कर रहा है कि यू विल लाइक फाइनर थिंग्स इन लाइफ 1 year from now. शो ऑफ करना आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा. क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदना, क्वालिटी की चीज़ें पहनना आपको अच्छा लगेगा. यू आर गोना बी दैट पर्सन जो अगेन घर पर इन्वेस्ट करेगा 1 year from now, कि अच्छी बेडशीट्स हो, अच्छी क्रॉकरी हो, अच्छा काउच हो, अच्छी वॉल पर पेंटिंग्स हो, अच्छा शैंडलियर हो, है ना. सो अच्छे कर्टन्स हो. तो होम डेकोर आप बहुत खरीदेंगे 1 year from now. We have the main female and we have occupation. Both these cards we get to know that we have like the same person in the different phases या different times में. What I want to say is कि you are the main person, you are the main lead pile number 1. तो आप हर तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ 1 year from now. You have your own home, you have your own sanctuary, you have your safe place, you love to decorate your home, but at the same time you are that person who is very hardworking, who wants a good career, who is working really well. अभी हम ये बात कर रहे थे केतु वाले प्रोफेशंस में, कह रही थी कि टेलर वाला भी जो काम होता है वो भी बड़ा, उसमें भी बुद्धि बल बहुत लगता है, वो भी कला वाला काम है. हम सभी को पता है, वी ऑल फीमेल्स वुड हैव वेंट टू अ टेलर एट वन पॉइंट इन आवर लाइव्स एंड वुड हैव सेड कि मास्टर जी ऐसा ऐसा बनाना है. और अगर वो मास्टर जी ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं
है ना। देखो टेलर को भी मास्टर जी बोलते हैं, मतलब जो हाईली स्किल्ड हो, हम एक्सपेक्ट यही करके चलते हैं, है ना। हमारा थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। अगले दिन या जब भी देना होगा उन्होंने आपको सूट, तो अगर वो मास्टर जी अच्छा काम नहीं करते तो फिटिंग आपको ख़राब मिलेगी, फिर उसे आप ठीक कराने की कोशिश करेंगे बट वो अच्छे से फिट फिर भी नहीं बैठेगा क्योंकि ऑलरेडी वो गलत सिल चुका है। और जो एकदम परफेक्ट मास्टर जी होगा एक बार में ही सेट करके देगा आपको, मतलब एक बार में ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी, 2-3 बार में अच्छी फिटिंग आ जाएगी। अच्छे मास्टर जी की पहचान है। ये हाईली स्किल्ड काम होता है एक टेलर का काम भी। तो विद हम केतु की बात कर रहे थे, टेलरिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन कार्ड में दिस पर्सन इज डूइंग द टेलरिंग रिलेटेड वर्क। मतलब मेनी ऑफ यू में डू टेलरिंग रिलेटेड वर्क, मेनी ऑफ यू कैन हैव योर ओन बुटीक, बट आई जस्ट वांट टू से कि केतु वाले प्रोफेशंस में आप हैं स्ट्रांगली, जहाँ पर मतलब आप हाईली स्किल्ड काम कर रहे हैं, जहाँ पर बड़ा दिमाग की खपज है, मतलब बहुत लंबा अगर आप अपने करियर में काम कर लेते हैं तो दिमाग खच हो जाता है, ऐसा आपको फील हो, तो बड़ा दिमागी काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं 1 year from now. At the same time you like to do home decor, you will like to do simple manual works. अब चाहे वो है डूइंग द डिशेज, डूइंग द लॉन्ड्री, क्लीनिंग द होम, तो वो आपको बड़ा थेराप्यूटिक लग सकता है, वो आपको बहुत अच्छा लग सकता है अपने घर को सजाना धजाना, बिकॉज अगेन वी हैव सेकंड 2 number विच इज़ अबाउट होम, फैमिली, कुटुंब, है ना, उसको अच्छे से रखना। और जो काम है आपका करियर है वो बहुत ज़्यादा दिमागी आपकी एनर्जी लेकर जाता है। All right, and you manage your mental health by taking care of your home. जब भी आप घर आते हैं तो आपको घर वाली फीलिंग आएगी, जहाँ पर भी आपका घर होगा वहाँ पर आपको घर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपका घर आपके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से आपने सेट करा होगा आपके अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको सुकून देता है। वी सी द रोज हियर, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, ऑल राइट, यू आर लिविंग अ रीगल रॉयल लाइफ 1 year from now. You have everything you wanted. ऑलराइट, तो आपको एज सच कोई शिकायत नहीं है अपने जीवन से, एंड यू आर फीलिंग लाइक दैट आई एम द मेन फीमेल लीड और आई एम द मेन मेल लीड, मेरी दुनिया में सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई एम द द प्रोटैगनिस्ट, है ना। तो आपको ऐसा फील होगा, यू विल फील दैट यस आई बिलोंग इन दिस वर्ल्ड। एंड वी हैव लॉन्जेटिविटी कार्ड। लॉन्जेटिविटी में वी हैव द सन एंड वी हैव टाइम। ये टाइम जो है, जो क्लॉक है, ये सैटर्न है, तो सन सैटर्न का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है। सन सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है समवन इन योर फैमिली विल वर्क इन गवर्नमेंट, यू कैन वर्क इन गवर्नमेंट, योर फादर में वर्क इन गवर्नमेंट। तो ये प्लेसमेंट्स यहाँ पर दिख रही है विद द लॉन्जेटिविटी कार्ड हेयर। सैटर्न और सन, एक हम अभी रीगल रॉयल चीज़ों की बात कर रहे थे कि आप एक रीगल रॉयल लाइफ जी रहे हैं, सन से रीगल रॉयल्टी आती है, तो कहीं ना कहीं आप रीगल रॉयल वे से काम करें। हो सकता है फॉरेन गवर्नमेंट में आप काम करें, दिस कैन हैपन, या इन जनरल गवर्नमेंट में आप काम करें 1 year from now. सैटर्न है तो सैटर्न वही कि सैटर्न इज कर्म करियर, तो करियर में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, करियर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करियर में गुड टाइम है आपके लिए 1 year from now. So this is happening for you, pile number 1. So yeah, that was pretty much it for you. Astrologically अगर हम देखें तो जैसे साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड साइन ऑफ केप्रिकॉन। तो इन साइंस इन नक्षत्र, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे। टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। लियो भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, लियो में भी प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, तो लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइन इन नक्षत्र में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोनो कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज the reading for you. Sun, Jupiter, Saturn, alright, इनमें से एक planet आपका आत्मा कारक planet होगा, planet holding the highest degree in your chart, planet which is signifying you, alright. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, winning citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the fulfillment card here, or you picked this pile because aapka birthday 26, 9/11,
13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Your life 1 year from now. We are first going to do an energy check for you 1 year from now. कि आपकी क्या एनर्जी है, what kind of things you are doing, what kind of things you are going through. तो आपकी क्या एनर्जी है 1 year from now. What are you feeling, what is happening for you, how things are. Okay, so we have the rightness. Okay, wonderful. We have thunderbolt as well. Oh my god. यहाँ पर भी मतलब फुलफिलमेंट कार्ड में जो पक गए हैं फल, उसी को ये इंडिविजुअल जो है उनको तोड़ रही है ना. तो यहाँ पर भी राइपनेस है, यहाँ पर भी आई थिंक सेम फ्रूट भी है, आई गेस, या नहीं, ये एप्पल है. एंड वी हैव एप्पल्स एज वेल हेयर एज वेल. सो आई जस्ट वांट टू से कि लाइफ में वो जो हम कहते आए हैं, बड़े बुजुर्ग शुरू से कहते आए हैं कि मेहनत का फल, मेहनत का फल, मेहनत का फल मीठा होता है, मिलता ज़रूर है. तो हाँ, 1 year from now मेहनत का फल मीठा है, मिल ज़रूर रहा है. अंगूर अब खट्टे नहीं हैं, अंगूर पक गए हैं, तो आप उनको तोड़कर खा सकते हैं. आपको ईजिली वो पके हुए फल मिलेंगे, यानी यू विल गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, आपकी पढ़ाई या आपका एफर्ट या आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं हो रहा है. वो इनफैक्ट ग्रो हो रहा है और कल को जाकर आपको खुशी देगा, आपको फुलफिल्ड फील कराएगा. ऑलराइट, वी हैव थंडरबोल्ट कार्ड. सो इट डज शोज विद अ थंडरबोल्ट हेयर दैट एक शॉकिंग रिवलेशन, एक शॉकिंग चेंज, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. ऑलराइट, वी हैव द रीबर्थ. ओ माई गॉड. सो इट डज शोज कि एक शॉकिंग रिवलिएशन के बाद आपका एक रीबर्थ होता है. ऑलराइट, आपका एक रीबर्थ होता है. आई फील कि जो लाइक मे बी अभी के समय में या थोड़ा आने वाले समय में आप, और ऑफ कोर्स वी हैव सक्सेस कार्ड. ओके, वी हैव सक्सेस कार्ड एज वेल. ओके, तो जैसे मैं एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो जैसे आई फील कि पाइल नंबर 2, you guys felt quite angry, you became aggressive, you kind of felt ke, you know, things are not working in my favor or things are not working for me, they are working against me. somehow maybe अभी की एनर्जी ऐसी है या अभी recent past की एनर्जीज कुछ ऐसी है, जैसे एक्सपेक्ट करा वैसा ना हो पाना एंड ऑल. एंड यू फेल्ट क्वाइट एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एज वेल. कई चीज़ें आपको ऐसे फील कराती रही. Alright, and then I see that in the next 1 year there is this rebirth for you. There is this rebirth for you which gives you success 1 year from now eventually. But in this rebirth, I feel this ke pile 2, you guys are like you guys are using some other kind of quality. जैसे हम सभी में कुछ ना कुछ qualities होती है. qualities plural है, एक quality नहीं है, कई क्वालिटीज़ होती है. तो किसी दूसरी, तीसरी, चौथी क्वालिटी या ग्रुप ऑफ क्वालिटी से आप कोई चीज़ अचीव करते हैं. आपको शायद पता नहीं था कि ये भी क्वालिटी मेरे में है. एक फिरोशियसनेस तो है, ये यहाँ दिखता है, एक फिरोशियसनेस है. और एक ग्रुप में ना घुल मिल पाना, एक बॉक्स में ना फिट हो पाना, ये चीज़ें हैं. आप एक एक्वेरियस काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल हैं. Alright, Aquarius, I feel कि is the most underrated sign. I मतलब growing up as well, I felt in my case growing up कि Aquarius के बारे में ना लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते. Even I'm talking about even astrologers. People just don't talk about Aquarius sign. And धीरे धीरे मैंने ये चीज़ realize करी, people don't know Aquarius people. They don't know Aquarius sign, what it is. मतलब हमें बस ये बता दिया जाता है Aquarius is about your hopes, wishes, desires. It's one of the trick houses and it tricks you in doing things. It's a house of devil because जो 11th house है Aquarius sign है, it's all about desires. तो जितनी डिज़ायर्स होगी उतना हम फंसते चले जाएंगे दुनिया में, उतना डेविल हमें फंसा लेगा. तो मतलब इतना हमें बताते थे शुरू से. बट नाउ व्हाट आई फील इज आई माई सेल्फ you can say that I am also an Aquarius person क्योंकि मेरे चार्ट में मेरा खुद का ascendant लॉर्ड एक्वेरियस साइन में है.
and according to Western astrology, I'm born in the Aquarius season. Again, I don't believe in Western astrology. I just feel कि it doesn't tell much. I just want to say, मतलब वो करियर के बारे में ज़्यादा नहीं बताते, वो प्रिसीजन नहीं है, बस पर्सनालिटी बता देते हैं साइंस की. दैट्स सिंपली जस्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. वैदिक में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से एक्वेरियस इज अ वेरी अंडररेटेड साइन. आई फील दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एलिमेंट इन यू गाइस. पाइल नंबर 2, एक्वेरियस इज लाइक हाईली इमोशनल साइन, highly emotional and intuitive sign. You cannot judge an Aquarius individual. You can't judge an Aquarius sign because अगर आपको लगता है ना Aquarius energy लेफ्ट साइड जा रही है, वो राइट चली जाएगी. Aquarius पर्सन ये करेगा, ये इधर जाएगा, इधर ये वाली चीज़ करेगा, वो कुछ और करेगा. तो इट्स अ वेरी अनप्रडिक्टेबल साइन एज वेल. बट Aquarius, even though it's an air sign, it is still emotional than most of the water signs. So I want to say this pile number 2, you guys have this Aquarius element for sure. मतलब आपके चार्ट में आपका ascendant lord Aquarius में हो सकता है, sun moon rising आत्मा कारक planet Aquarius साइन में हो सकता है. Aquarius में धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा होता है. सतविशाख इज राहु रूल्ड नक्षत्र है, तो राहु इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल एनर्जी एंड इट्स अ एनर्जी जो कि बहुत जो अगेन Aquarius साइन इज़ अ स्ट्रॉमी साइन. It's a storm, it's a tornado, all right. It's just not a cool, breezy, easy sign like Leo, Gemini. No, Aquarius या Libra की तरह. Leo जो है again it's a fire sign, but Gemini, Libra is air sign, but Aquarius is also air sign, but it's like the tornado, it's like the storm. All right, so यहाँ पर राहु का एलिमेंट भी आ गया, तो that's why we have the thunderbolt element. अब बिजली भी कड़क रही है, अब गरज रहे हो, बरस रहे हो. You're doing this in the next 1 year. गरजोगे, भड़कोगे, और उसके बाद जब बादल छटते हैं तो सूरज दिखेगा, तो जो है शाइन आप करना शुरू होता है, आपको नेम फेम मिलना शुरू होता है, आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आती है, आपको सक्सेस मिलता है, बिकॉज अगेन सन रिप्रेजेंट सक्सेस. So I want to say that next 1 year is going to be the time जहाँ पर you will work like a crazy person. Literally. You'll on your crazy mode on. Aquarius people are the most craziest. I'm telling you, being an Aquarius, I know we are crazy. So, and if you feel like and let me tell you one more thing. Most of the tarot card readers, not astrologers, tarot card readers specifically, are Aquarius. Yes, we are half crazy people. It is true. You can't predict us. तो आप ऐसे अनप्रिडिक्टेबल बन रहे. यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग Aquarius पर्सन. पाइल नंबर 2, प्लैनेट्स होंगे Aquarius साइन में, somehow होंगे, 11th हाउस में होंगे. एंड इट डज शोज कि यू आर गोना डू तांडव. In the next 1 year, you are going to work like crazy. And people will be like, ये हो कैसे रहा है? इतना स्टैमिना कहाँ से आ रहा है? 10 लोग काम आप कल्ले कैसे कर रहे हो? And yeah, in the end of the deck, we see like so many people, right? तो मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे, oh my god, अभी हम यही बात कर रहे थे कि 10 लोग काम या बहुत सारा काम आप कल्ले ही कर रहे हो. And you're not getting tired at all. कि कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं तो आप मेंटली कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते हैं अपने आप से, मेंटली एट पीस रहते हैं आप. यू आर वर्किंग, यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड या यू आर गोइंग विद दैट. एक फिरोशियसनेस जो आपके अंदर है, एक एंगर एग्रेशन जो आपके अंदर है, आपने उसको डायरेक्शन दे दी उस मार्स एनर्जी को. मार्स इज कुछ कर दिखाने का ताकत, कुछ कर दिखाने की एनर्जी इज मार्स. ऑलराइट, एफर्ट्स मार्स रिप्रेजेंट करता है. तो अगेन मार्स 3rd, 6th या 10th हाउस में हो सकता है, जो कि मार्स की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है. तीनों ही वन ऑफ द बेस्ट, तीनों ही बहुत बेस्ट है प्लेसमेंट्स. एफर्ट्स आप बहुत अच्छे कर पा रहे हैं. या मार्स आपका जेमिनी वर्गो या कैप्रिकॉर्न में होगा, जो कि अगेन यही शो करता है कि आप एफर्ट्स बहुत अच्छे कर पाते हैं. तो मेंटली आप खुश रह रहे हैं, सेटिस्फाइड रह रहे हैं. 1 year from now you're getting the sweet fruit of your hard work, and 1 year from now you may feel like कि मैंने कर कैसे लिया ये सारी चीज़ें. आई डोंट नो मेरे अंदर ये इतनी सारी एनर्जी कैसे आई, कैसे नहीं आई. और दिखोगे बड़े आप शांत नॉर्मल, बट जब काम करने बैठते हो तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आपके अंदर काम करने का स्टैमिना कितना है.
अपने प्रोफेशन में एक्टिव आप कितना रहते हैं, मस्त आप कितना रहते हैं. पीपल गेट लाइक ओ माई, दे फील्स they are like you are a robot maybe but that's not true. You're not a robot. It's just that you have a lot of energy within you and you're going and you are crazy. Pile to you guys are crazy. You will work things according to योर प्लान. मतलब आप दूसरे जैसे काम करते हो उस तरीके से काम ना करके एक डिफरेंट पाथवे चूज़ करते हो उस काम को कंप्लीट करने का, और उस पाथवे पर हर कोई नहीं चल सकता, और पर आप चल रहे हैं बिकॉज यू फील दैट आई एम मेंट टू बी ऑन दिस अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल पाथ एंड मैं इस पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता हूँ या करती हूँ. तो इवन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू आर चेंजिंग आवर लाइफ कम्प्लीटली. यू मे इवन फील कि मैंने बॉर्डम में ही कितनी चीज़ें कर ली. मतलब बोर हो रही थी या बोर हो रहा था, उसी बॉर्डम में मैंने अपना एक करियर क्रिएट कर लिया. यू मे फील दिस वे एज वेल 1 year फ्रॉम नाउ. मीडिएटर कार्ड है. इट सेज गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रैटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड ऑफ एन आर्गुमेंट. अगेन यू आर दैट पर्सन, पाइल नंबर 2, जो कन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है. अगर जीवन बड़ा सीधा सीधा चल रहा होगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा पाइल 2. जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर कहते हैं हमने देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. अरे क्रिएट भी तो आपने ही करी थी, क्योंकि आपसे सीधा बैठा नहीं जाता है. पाइल नंबर 2, यू मे हैव रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन योर चार्ट. रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वाला पर्सन उथल पुथल जीवन में बहुत मचाता है, क्योंकि उससे सीधा सीधा चला नहीं जाता है. इधर उधर वो पंगे लेता रहता है, डिफरेंट वे से चीज़ें ट्राई आउट करता रहता है. उसका काम करने का तरीका ही कुछ अलग होता है, ज़िंदगी को जीने का नज़रिया ही कुछ अलग होता है. यू आर वन ऑफ देम पाइल 2. सो नेक्स्ट 1 year इज़ गोना बी द ईयर जहाँ पर आप अपनी क्रेजीनेस को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. And you're not going to please other people. You're going to become the bad boy or the bad girl in the next 1 year. And 1 year from now, people will realize that you did the right thing. You absolutely did the right thing. हो सकता है in the next 1 year there are people जो आपका मजाक उड़ाए and all, and those people will be very jealous of your success because you're going to get success 1 year from now. You are going to be that successful person. अगर कोई कहता है कि मैं शेर हूँ, तो आप कहोगे अरे मैं शेरों वाली माता हूँ, तुम पे बैठ के सवारी करूँगी मैं. तो तुम जो है मुझे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते. लाइक वी हैव द लायन हेयर एंड वी हैव द टाइगर हेयर. We are both the wild animals here, and on both of them there is this person who is sitting. मतलब ये तो इतना बैठी नहीं है, but ये तो completely बैठे हुए, but again it's on this line only, this person. So I just want to say that you are that person जो ये wild animals को भी शांत कर सकता है, wild animals की सवारी करता है, wild situations पर आराम से act करते हो. You are that person जिसको anxiety भी रहती है. You are that person, file number 2. आपको anxiety रहती है, आप अपने मन में scenarios बनाते हो कि मैं ऐसा कहूँगी, ये करूँगा, ऐसा करूँगी, ये कहूँगा. ऐसे सिनेरियोज भी आप बहुत बनाते हैं और आप एनजाइटी भी आपको रहती है. तभी आप मुश्किल सिचुएशंस में ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं. इजी सिचुएशंस या नॉर्मल लाइफ आपको बोरिंग लगती है. आप कहते हो कि जीवन तो नीरस है, बेकार चल रहा है. और जब जीवन में आ जाती है थोड़ी सी परेशानियाँ जो कि आप खुद क्रिएट करते हैं, तब आपको आने लगता है मज़ा. सो you are accepting the wild side of you in the next 1 year, and that wild side is coming out. It is coming out. All right. So I'm really happy for you, pile number 2. you are that person जो दो लोगों के बीच शायद खुद लड़ाई क्रिएट कर दे, but you are going to be that one जो लड़ाई जो है सॉल्व कराएगा. You are going to be that mediator. या यू आर गोना बी द कन्फ्लिक्ट मैनेजर, फाइल नंबर 2. इन द नेक्स्ट 1 year आप कोई कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करेंगे और उस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपको मज़ा आएगा. सो पहला यहाँ पर टेरो से एक सवाल है कि वेयर आर यू लिविंग, फाइल नंबर 2. ओके, वी हैव द डेविल एलिमेंट विद द थंडर बोल्ट. वी हैव द डेविल अगेन.
अगेन ये जो थंडरबोल्ट वाली एनर्जी है, रीबर्थ वाली एनर्जी है, फिर डेवल वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं उस इमोशनल डाउनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद एक्सेप्टिंग योर शैडो सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर क्रेजी सेल्फ को फिर ये कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं. राहु एलिमेंट यहाँ पाइल नंबर 2 में भी स्ट्रांग है, पाइल 1 में भी स्ट्रांग था. डेविल एनर्जी राहु का एलिमेंट है, और राहु का ही नक्षत्र जो एक्वेरियस के सेंटर में आता है, जो कि शतभिषाक. तो शतभिषाक इज अबाउट 1000 हीलर्स, 1000 फिजिशियंस टू गॉड. तो जब राहु शतभिषाक नक्षत्र में जाएगा तो आई थिंक अभी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राहु इज राइट ऑन एक्वेरियस साइन, आई थिंक इट इज इन शतभिषाक नक्षत्र. तो अभी के समय में, जब मतलब अभी यानी अभी फेब्रुवरी एंड हो रहा है, मार्च अभी शुरू हो रहा है, 2026 है, तो अभी लिटरली राहु इज इन एक्वेरियस, और वो भी शतभिषाक नक्षत्र में. तो हीलिंग यहाँ पर होगी. यू विल लिटरली नोटिस पाइल नंबर 2 अभी से आपने शायद नोटिस करना शुरू कर दिया मार्च मंथ में भी, क्योंकि शतभिषाक इज अबाउट हीलर्स. सो यू गोना गो टू योर डॉक्टर्स, वेदर इट्स योर डेंटिस्ट, वेदर इट्स योर homeopathy ayurvedic doctor, you're gonna go to your doctors because you would want to get yourself fixed. कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको तंग कर रहा होगा, काफ़ी समय से शायद तंग कर रहा हो, बट आप टाली जा रहे थे डॉक्टर अपॉइंटमेंट, बट फाइनली यू विल गो टू योर डॉक्टर. अभी होना भी शुरू हो गया होगा, फेब्रुवरी मिड से होना शुरू हो गया होगा कि आपने अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस लगाना शुरू करा, क्योंकि हेल्थ डामाडोल हो रही थी. तो उसको आप सेट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे मार्च मंथ में, मिड फेब से ये चीज़ शुरू होगी. और इट्स अबाउट हीलिंग. हर किसी को हीलिंग मिलती है. शतभिषाक जब राहु में आता है, या आई शुड से राहु शतभिषाक नक्षत्र में जाता है, तो हीलिंग सभी को मिलती ही है हेल्थ वाइज. मतलब आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उससे फिर आपकी हीलिंग हो जाती है, राइट, मेडिसिन मिल जाता है. तो ये तो अभी चल ही रहा है. पर 1 year from now with the devil element here, I just want to say that you may become this person जिसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. बहुत सारे फॉरेनर्स से, फॉरेन लोगों से, या पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, उन लोगों से आपका कनेक्शन बैठता है. डेविल एलिमेंट आपके रहने की स्थान को रिप्रेजेंट करे, ये आपके लिविंग एरिया को रिप्रेजेंट करे, जहाँ पर आप रहेंगे. 1 year from now फॉरेन लैंड में रह सकते हैं, एक फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाएंगे, चाहे भारत में ही, बट चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है. ऑलराइट, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से आप मिलेंगे, जिन लोगों का मेंटालिटी, क्यूजीन अगेन आपसे डिफरेंट है. तो ऐसे लोगों से आपका, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा. अगेन राहु जो है फ्लैट्स को, अपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. जो 20 फ्लोर का बिल्डिंग है जैसे, तो उसकी 17, 18, 19 या 20th फ्लोर पर आप रहेंगे. हाई राइज को रिप्रेजेंट करता है राहु. तो ऐसी जगहों पर आप रहेंगे, ये यहाँ दिखता है. ऑल राइट, देन अबाउट योर करियर, व्हाट आर यू डूइंग. सिर्फ 6 of Swords, करियर की वजह से ट्रैवल. 1 year फ्रॉम नाउ अगेन आप जहाँ हैं आप वहाँ पर नहीं होंगे, ट्रैवल करेंगे, एक फार अवे प्लेस पर जाएंगे ड्यू टू करियर. करियर की वजह से ट्रैवल्स होंगे. 6 of Swords ये शो करता है कि करियर में बदलाव होंगे, डेफिनेटली होंगे. 1 year फ्रॉम नाउ एक जॉब से दूसरी जॉब, या जॉब से बिजनेस की तरफ आप जाएंगे, बदलाव डेफिनेटली होगा. कुछ और करियर के बारे में, अगेन वी हैव 10 of Swords. 10 of Swords शोज एंडिंग ऑफ सम बैड फेस. तो 1 year फ्रॉम नाउ एक हार्श समय का एंड हो जाता है. करियर वाइज जो हार्श समय था 1 year फ्रॉम नाउ वो एंड होता है, और एक नई शुरुआत होती है करियर वाइज. ऑल राइट, समथिंग मोर अबाउट करियर, वी हैव टेम्परेंस. 1 year फ्रॉम नाउ आपको स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क मिलता है, करियर में अप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है. नेक्स्ट 1 year इज गोना बी अबाउट यू बिल्डिंग योर ब्रांड, यू बिल्डिंग समथिंग, और उसमें आपकी मेहनत, उसमें आपका जोर लगेगा. ऑल राइट, टेम्परेंस 1 year फ्रॉम नाउ ये शो करता है कि ज़िंदगी में बैलेंस आना शुरू होगा, वर्क लाइफ बैलेंस आएगा. टेम्परेंस ये शो करता है दैट यू विल फील दैट मैंने बहुत मेहनत करी. 1 year फ्रॉम नाउ यू विल बी लाइक, अब मेरे को एक बैलेंस चाहिए जीवन में. अब जो है मैं लोगों को इवन हायर कर सकती हूँ. तो हो सकता है नेक्स्ट 1 year में हर काम आप ही कर रहे हैं. 1 year फ्रॉम नाउ यू विल स्टार्ट टू हायर पीपल, और आप अपने काम का बोझ अपने ऊपर से हटाते हैं, दूसरों में वो बांट देते हैं. आप जॉब्स देना शुरू करेंगे 1 year फ्रॉम नाउ, ये यहाँ नज़र आ रहा है. टेम्परेंस इज अबाउट दैट यू आर वेरी नॉलेजफुल, यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी स्किल्ड इन योर करियर फील्ड. सो दैट्स ग्रेट. सो ये चीज़ करियर वाइज दिख रही है. About your health, actually first let's pull a card for your finance, उसके बाद health, love life. So finance के लिए we have the world card here. So the world here shows me that you guys are gonna be the people जो एक financial like
you guys will be like starting a new cycle in terms of money, in terms of finances 1 year from now. Literally, that's gonna happen. And we have the Emperor as well for your finance. So this shows me with the Emperor element that you are the king. Again, you are gonna hire other people. Again, you are gonna be that person जो दूसरों को रोजगार देगा. ऑल राइट, एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल 1 year फ्रॉम नाउ आपके लिए शुरू होता है. मनी वाइज आप बहुत सारे पैसे मेहनत से इन द नेक्स्ट 1 year कमाते हैं, और फिर आपका बिजनेस या आपका करियर और एक्सपैंड होता चला जाता है. फिर आप कुछ मनी को जो है दूसरों की सैलरी में डालना शुरू करते हैं. वो आपके लिए और काम अच्छा कर पाते हैं और आप पैसे अच्छे कमा पाते हैं. सो यू नो वेयर टू इन्वेस्ट एज वेल विद द एम्परर एलिमेंट, कि जहाँ पैसे शाह की तरह खर्चने हैं वहाँ आप शाह की तरह खर्चते हैं, और जहाँ एक पैसा नहीं लगाना वहाँ एक पैसा आप नहीं लगाएंगे. समथिंग मोर अबाउट मनी. वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल. विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एलिमेंट वही, that you are very strict with your money. You're like, okay, this person deserves this much money, I'm going to give them this much money. Okay, this person deserves a promotion, I'll give them the promotion, I'll give them better money. आप हाईली स्किल्ड लोग ही हायर करेंगे. आप हाईली स्किल्ड पीपल क्रिएट भी कर सकते हैं या हायर करेंगे. स्किल का बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू करने वाले इंडिविजुअल होंगे. डिग्री से भी ज़्यादा आप स्किल्ड लोगों की वैल्यू करेंगे. डिग्री हो या ना हो, इट मे नॉट मैटर टू यू. व्हाट विल मैटर इज़ कि हाईली स्किल्ड होना चाहिए, पर्सन को काम आना चाहिए. और आप अगेन बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. यू आर गेटिंग एसेट्स, यू आर नॉट रियली क्रिएटिंग लाइबिलिटीज, यू गोना क्रिएट एसेट्स. यानी जिन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती चली जाती है समय के साथ, उन जगहों पर आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी और मेटल्स. सो बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच है फाइनेंसेस मनी को लेकर. बहुत अच्छा एक अप्रोच आपका नज़र आ रहा है. अबाउट हेल्थ वी हैव हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस बड़ी समझदारों वाला कार्ड है. ऑल राइट, हाई प्रीस्टेस 1 year फ्रॉम नाउ यू आर समवन जो बहुत वाइज माने जाएंगे. हाई प्रीस्टेस ये भी शो करता है 1 year फ्रॉम नाउ शांति आ रही है. ऑल राइट, क्योटिक एनर्जी नेक्स्ट 1 year में है, बट 1 year फ्रॉम नाउ क्योस शांत होता है. जैसे हम शुरू में भी यही बात कर रहे थे पाइल नंबर 2 कि स्टॉर्म आता है ना, लाइटनिंग होती है, ऐसे बिजली कड़कती है, चमकती है, और उसके बाद जब वो सब हो जाता है, बारिश आ जाती है, फिर सूरज हमें दिखना शुरू होता है, क्लाउड्स हट जाते हैं, we shine bright, success comes in, right? So high priestess वही समझदार आप कहलाएंगे दुनिया में. इनफैक्ट आप मेंटली एट पीस फील करेंगे, बिकॉज यू विल बी लाइक कि जो मेरे अंदर बहुत एक एक्सेसिव एनर्जी था वो मैंने पिछले 1 year में जो है कर लिया. मतलब यू विल फील लाइक दिस 1 year फ्रॉम नाउ कि मैंने पिछले 12 महीनों में बहुत एफर्ट कर लिया. मेरे जो अंदर बहुत ज़्यादा एक भड़ास थी, एक्सेसिव एनर्जी थी, वो मैंने सही जगह पर लगा दी, अपनी मार्सेशन एनर्जी. एंड नाउ आई एम फीलिंग काम, आई एम फीलिंग कंपोज, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. आई हैव अ वेरी गुड, मैं अपनी आप की बहुत रिस्पेक्ट करूँ. मेरा अपने आप को लेकर थाट प्रोसेस बहुत अच्छा है. 8 of Cups का कार्ड ये शो कर रहा है 1 year फ्रॉम नाउ अगेन फिजिकली मेंटली यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग दैट आई एम रेडी फॉर अ न्यू जर्नी एज वेल. एंड I'm not holding grudges against people. I'm happy जहाँ पर मैं हूँ, और लोग भी मेरे से बहुत खुश हैं. mentally, emotionally, physically, you're feeling very good, you're feeling yourself, you're feeling calm, composed. So this is what is happening for you. यहाँ पर आपकी love life के लिए अगर हमें कुछ पता लगे, personal life के बारे में, we have hanged one here. Hanged one here shows 1 year from now you may have a different kind of perspective towards your personal life also, because again hanged man भी एक various element है, unorthodox element है, life को एक different perspective से देखने वाला element है. Maybe for other people marriage brings them or they think marriage brings stability, but you may feel कि marriage तो हमें और unstable बना देती है. You may feel this way. मतलब जो marriage को लेकर एक सोसाइटी का जो सोच है कि हर किसी को मैरिज करनी चाहिए, everyone should have children, you may not have this kind of thought process. You may have a very very different thought process from the society. 6 of Cups का कार्ड है. Some of you maybe already are married, already in a romantic relationship. Alright, it can happen that you guys get married and eventually 1 year from now you're going to start baby planning. Alright, और यू मे, बिकॉज एक हैंग्ड मैन का अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है, तो यू मे अडॉप्ट अ चाइल्ड. दिस कैन इवन हैपन 1 year फ्रॉम नाउ.
ऑल राइट, बट आई डू सी कि पर्सनल लाइफ को लेके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, कुछ हट के आप पर्सनल लाइफ में करते हैं. अगेन यहाँ एक रिलेशनशिप का तो चीज़ नहीं आ रहा है, बट इट कैन हैपन कि 1 year फ्रॉम नाउ यू कैन स्टिल बी सिंगल. ऑल राइट, बिकॉज यहाँ अगेन यू आर नॉट रियली कमिंग इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. हैंगमैन ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है. इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑलरेडी मैरिड, तो चीज़ें डिफरेंट होगी. तो मे बी यू आर हैविंग अ चिल्ड्रन और यू आर एक्चुअली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. दिस कैन हैपन क्योंकि एक अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट तो यहाँ पर है ही हैंगमैन के साथ. But I want to say with the hangman energy, some of you can still be single and may plan to get a child adopted, and you will name them as yours. So it's going to, some of you are literally doing this, and this is wonderful, great. I support you. All right, I'll do something more if we can get. We have the courtship. Oh my God. Okay, we have the courtship card here. Okay. 4 months from now या 4 weeks from now it can happen कि Cupid hits you. Some of you, all right, it definitely will hit you. You will fall in love with someone. दिमाग काम करना बंद हो जाएगा. प्यार में इंसान तभी पड़ता है ना जब इंटेलिजेंस थोड़ा ख़त्म हो, उसका लॉजिक जाए, तभी वो प्यार में पड़ सकता है. प्यार इंसान को अंधा, लूला, लंगड़ा सब बना देता है, और ये बात सच है. तो किसी को आप पसंद आ जाओ किसी और आपको वो पसंद आए, ऑल राइट, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होगी. लिटरली इट्स हैपनिंग. इट्स नॉट हैपनिंग 1 year फ्रॉम नाउ, इट्स हैपनिंग 4 weeks और 4 months फ्रॉम नाउ. दिस इज हैपनिंग फॉर यू. एंड वी हैव चेंज. सो जो आपके लाइफ को लेकर प्लान्स थे, दे विल चेंज व्हेन दिस पर्सन कम्स इन, and you eventually will to get married to each other. Maybe one of you can be very much feeling uncomfortable with the idea of marriage, but eventually marriage will happen and you guys are shifting to a different state, city or different place again. And we have the mature man. This mature man here shows that जब आप इस person से मिलते हैं तो मे बी इस पर्सन के फादर या आपके फादर या कोई अगेन एक mature male figure may say something which makes sense, and that is an advice which they are trying to give to you. Alright, इस person का नाम C या M से शुरू होगा, या आपका नाम भी C से या M से शुरू होता होगा, या आपके पार्टनर का नाम C या M से शुरू होता होगा, या इस mature male का नाम CM से शुरू होता होगा. Alright, maybe you may meet this person, your life partner or this mature man 4th, 9th या 5th date पर किसी month के. Alright, and this person just gives you some advice which changes some kind of like something in you, some perspective in you, and you will somehow, some of you will embrace marriage. Alright, so this is happening. Okay, but again with the hangman energy, some of you are getting married, some of you are not getting married 1 year from now, and would like to become a single parent as well, some of you. Alright, तो ये चीज़ एक मिक्स सी आ रही है, मिक्स सिग्नल से यहाँ पर आ रहे हैं. बट या 4 weeks from now, 4 months from now, you're falling in love with someone and you really want to get married to them, and eventually some of you will get married some of you will get married within the year. And it can happen that both of you may want to 1 year from now want to have a family and may want to hire a surrogate, or maybe just you would want to adopt, not even surrogacy actually, some of you will just want to adopt. All right, so that's there. क्योंकि कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 2, आप में से ऐसे कुछ लोग कहें कि ऑलरेडी भाई हम खुद तो सफ़र कर ही रहे हैं, या ज़िंदगी तो एक रेस है ही है, एक रैट रेस है ही है, नेचुरल रिसोर्स तो डिप्लीट हो ही रहे हैं, हम एक और जो है जान को पैदा करके उसको भी इस प्रॉब्लम में फंसा दें तो ये तो ठीक नहीं होगा. तो जो ऑलरेडी इस दुनिया में है हम उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं. ऑल राइट, बिकॉज वो ऑलरेडी एक टफ सिचुएशन में हो सकता है, सो लेट्स गिव सम वन अ होम. सो ऐसा थॉट प्रोसेस है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ये थॉट प्रोसेस है. So this is something which we are getting. Last but not the least, we have the focus card. With the focus element, you are going to notice in the next 1 year, you guys are going to be very focused towards focused towards your present. आप जो present में काम करेंगे उसमें आप बहुत focused होंगे, present में focus करेंगे, present में present रहेंगे.
इस वजह से जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे. So this is happening for you. स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि फोकस हमारा अच्छा हो रहा है, तो ग्रेट, वेरी गुड. सो that's there. So this is happening for you, pile number 2. 1 year from now और इन द नेक्स्ट 1 year ये कुछ चीज़ें आपके जीवन में हो रही है. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ एक्वेरियस, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ हाँ, तो ये साइंस प्रोमिनेंट हैं. तो जेमिनाई में वी हैव द, इवन लिब्रा, जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा रोहिणी, मृगशिरा आर्द्रा, ओहो रोहिणी तो टॉरस में आता है, अपोलोजाइज. जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वासु, वर्गों में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, चित्रा स्पिल करता है. लिब्रा में स्वाति विशाखा. फिर एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1 D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एंड ऑल्सो विद द पूर्व भद्रपदा नक्षत्र and with the thunderbolt energy, some of you are going to do 1 year from now, some of you will feel spiritual awakening. Not like you're not going to go to the top of the spirituality, no, that's not there, but spiritual awakening will be there 1 year from now. When you exhaust yourself in the world, in the next 1 year I do see you exhausting yourself in the world. आप दुनिया में खो जाने वाले हो नेक्स्ट 1 year में, पूरे मटीरियलिस्टिक बनोगे इन द नेक्स्ट 1 year. 1 year from now you will have God realization. You will realize that hey, I am a soul and I want to be connected to supreme soul. और कुछ लोग ये बिफोर मैरिज भी कर लेंगे और कुछ लोग ये आफ्टर मैरिज करेंगे. कई लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी ही मैरिज से शुरू होती है. जैसे आपका पाइसीज राइजिंग हो सकता है D9 नवांशा चार्ट में. नवांशा लाइफ आफ्टर मैरिज या लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35 को रिप्रेजेंट करता है. उसमें यू कैन बी अ पाइसीज राइजिंग पर्सन. या फिर 7th लॉर्ड इन द बर्थ चार्ट कैन बी प्लेस्ड इन द 9th हाउस. या 9th जो अगर यू आर लेट्स से वर्गो राइजिंग पर्सन, तो 9th हाउस में टॉरस साइन आता है. तो टॉरस राइजिंग आपका नवांशा में हो, मतलब 9th हाउस में जो साइन हो उस साइन का राइजिंग हो आपके नवांशा में, जो कि ये शो करता है कि भाग्य उदय ही या स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ही या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही मैरिज से शुरू हो. कई लोग इसी वजह से मैरिज करते हैं कि मतलब सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी उन कहीं ना कहीं सोल वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहती है, बट सोल ऑल्सो नोज कि तभी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सकेगी जब मेरा पार्टनर होगा. तो सोल नोज, ऑल राइट, या डेस्टिनी नोज. और कुछ लोग इवन बिफोर मैरिज भी जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर जाते हैं. कुछ लोग होते हैं ऐसे भी. तो अगेन इस पाइल में दोनों टाइप के लोग हैं. तभी मैंने कहा कि कुछ मैरिज कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं. दिस इज हैपनिंग. तो अगेन पूरा भद्रपदा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू लाइटनिंग. इट्स अबाउट कि जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक करेगी, सच में स्ट्राइक करेगी हमें. तो कुंडलिनी अवेकनिंग जब पूर्व भद्रपदा पर्सन करता है, इट्स लाइक कि हम पे तो बिजली कड़की हम पर ही गिरी साथ में. इट फील्स लाइक दिस पूर्व भद्रपदा के लिए. उत्तर भद्रपदा के लिए स्पिरिचुअलिटी में आगे चलना इट्स क्वाइट ईजियर. पूर्व भद्रपदा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, या एक इंसान को टफ़ एक्सपीरियंसेस से जाना पड़े बिफोर दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन लाइफ. टफ़ एक्सपीरियंसेस से जाना पड़े, क्योंकि जब वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है, या मेरे पार्टनर ने मेरे को ऐसा कह दिया, परिवार मेरे को पसंद नहीं करता, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जब उसके साथ होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो कहता है सुख में सिमरन नहीं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन सुख में करे ना कोई, जो दुख सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए. तो फिर उसको ये उसके लिए फॉर्मूला आता है, या ऐसा ही वो करता है कि फिर जब दुख आता है तो वो भगवान के पास जाता है, तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. कुछ लोग ऐसा भी है. तो व्हाट आई सी विद here with a thunderbolt element, 1 year from now you guys are doing spiritual awakening. That is also happening. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 2. And also Venus, Mercury और जुपिटर, इनमें से एक प्लांट आपका आत्मकारक प्लांट होगा. सेजिटेरियस साइन में भी प्लांट्स प्लेस होंगे. सेजिटेरियस में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला पूर्व षडाउत्तराषाढ़ा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में भी D1 D12 और D9 नवंश चार्ट में ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू लेट मी नो हाउ दिस
again how you felt after the reading. Do let me know in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a reading, Nakshatra Kulli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to our website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, they're handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the beginnings card here, number 7, or you picked this pile because आपका birthday 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी month के. You pick this pile according to intuition या फिर अपनी date of birth से. Let's get started with your reading. First and foremost, ये थोड़ा irrelevant है reading से, but I just want to tell you something. I just feel like saying this thing. I just feel कि someone stopped talking to you suddenly and you don't know the reason about it. मतलब मेरे को ऐसा feel हो रहा है अभी. I just, like my intuition says this, so I just want to say it out loud, that someone stopped talking to you. And let me tell you, it's not you, pile number 3, कि आपकी कोई बात उनको बुरी लगी या आप बुरे लग गए उनको. It's not like this. That person maybe is dealing with some physical health issue, or they are having a tough time in life. Mainly that person is dealing with some physical health issue, and you are thinking that this person is very rude, or this person is not talking to me at all. Everything was well and good with us 1 day ago. I don't know what's wrong with this person. Guess what? They are sick. And so you should, if अगर वो आपसे बात नहीं करे, then you should go and talk to them, because maybe they are not doing well right now and they would love a company right now. So कुछ यहाँ गलतफहमी है आपके मन में उस person को लेकर. So go and talk to them, speak to them, because they are having a tough time in terms of health. So I just felt like saying this, and I said it. Again, let's now start with some again, this can be, again जो ये information है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा relevant है. Again इसको तभी accept करना, इस energy को, जो भी मैंने बात कही उस बात को, अगर वो आपसे resonate कर गया तो, because I just felt that some of you are dealing with this, so that's the advice. So let's get started with the reading now, pile number 3. Your life 1 year from now. पहले हम एक एनर्जी चेक करेंगे कि 1 year from now आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है. पाइल नंबर 3. Pile 3. We have past lives. Okay. We have We Are the World. Right. We have suppression. Okay. Celebration. And silence. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay. With the past lives and We Are the World energy, I feel 1 year from now you are connected to the world. You are literally connected to a lot of people. It could have happened, pile number 3, that you were a king in your past lives, and we don't know which lifetime, but you were a queen. You were a king, not the queen. You were the king. So you had karmic contract with a lot of people, good and bad both. You have this karmic contract with a lot of people. तो आज की डेट में राजा तो नहीं है, राजा रानी तो इतने नहीं है, या दुनिया से कौन लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है. इमेजिन, जस्ट लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, लाइक कौन से लोग सबसे ज़्यादा दुनिया से कनेक्टेड है सबसे, और वो जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं, डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं. पहली बात, पॉलिटिशियंस हमें इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज़
जो है बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, सिस्टम में लेकर आते हैं, उनके पास पावर है, तो वो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है आपकी सॉफ्ट पावर, यानी आपके इन्फ्लुएंसर्स। ये भी जो आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर्स है या जो पॉलिटिशियंस है, ये कभी किस ज़माने में किंग्स थे, ये राजा थे। इनको बहुत सारे लोग जानते थे, बहुत सारे लोगों ने इनको प्यार दिया था, या ये राजा जब थे इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए थे, पैसों का दान दिया था, या कुछ ना कुछ लेन देन किया था। प्रजा और राजा के बीच में कुछ ना कुछ लेन देन हुआ था। राजा ने बहुत कुछ दिया था प्रजा को, और प्रजा ने भी बहुत सम्मान प्यार दिया था उस राजा को। अब वो आज की डेट में राजा जो है, वो आत्माएं जो राजा थी, वो या तो पॉलिटिशियंस है या फिर वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं उनके ज़्यादा नेगेटिव कार्मिक डेट हैं अपनी प्रजा से, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रजा को लूटा था। ऑलराइट, तो इस लाइफ टाइम में उनको कुछ चीज़ें देनी भी पड़ेगी। पास्ट में इन्होंने प्रजा को लूटा तो कुछ ना कुछ दिया भी था, तो अच्छी चीज़ें भी वो प्रजा के लिए आज करेंगे वो पॉलिटिशियंस। उसी तरह जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो सॉफ्ट पावर थी, जिसको आज आपने सब्सक्राइब करा है, कहीं ना कहीं उसके राज्य में आप रहते थे कभी, और उससे आपको स्नेह प्यार मिला, तभी आपने उसको सब्सक्राइब करा। यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं वो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं, और सॉफ्टली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ है। अब पाइल नंबर 3, ये आपसे इस वजह से ये चीज़ें रिलेटेड है क्योंकि आप खुद एक राजा थे पास्ट में, और अब 1 ईयर फ्रॉम नाउ या तो आप एक खुद पॉलिटिशियन बन जाएंगे या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। इनमें से आप कुछ बनेंगे, या एक ऐसी पोजीशन पर आएंगे जहाँ से लोग आपको बहुत देखते हैं, आप उनको देखते हैं, समहाउ आप मदद करते हैं, लोग आपको बहुत देखते हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लोग मतलब समहाउ यू गोना बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। It's going to be like this. It's going to be like this. And you have a lot of fan followings 1 year from now. नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी कुछ मेरे को याद नहीं प्रॉपर नंबर, बट अभी आया था कुछ न्यूज़, मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स उनको मिले। वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोअर्स हैं उनके इन द वर्ल्ड in terms of politician, in the list of politicians. So 1 year from now आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग फॉलो करना चाहेंगे, आपको लोग देखना चाहेंगे। मरकरी मार्स का कंजंक्शन, मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मरकरी के 3रे या 11वें घर में मार्स हो, ये भी प्लेसमेंट इन्फ्लुएंसर बनाती है, या मरकरी के आगे या पीछे वाले घर में मार्स हो तो ये इन्फ्लुएंसर बनने की प्लेसमेंट है। तो ऐसा कुछ होगा चार्ट में, तो लोग आपको बहुत फॉलो करेंगे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको फॉलो करा है, जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको देखा है, आपसे कनेक्टेड फील करा है। ये लोग आपकी प्रजा थे, आपके साथ रहते थे, आपको इनके साथ रह के खुशी थी, इनको आपके साथ रहकर खुशी थी। कुछ लोगों के साथ थोड़े कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी है नेगेटिव वे में, आपके कुछ के साथ, बहुतों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। तो ऐसे पास्ट लाइफ के लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे। आपको कोई ऐसी नहीं सब्सक्राइब करता या फॉलो करता है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, आपका उनसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तभी उनको आपसे कुछ मिला होता है पास्ट में अच्छा, तभी वो आपको सब्सक्राइब या फॉलो करते हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, जो भी हैं। तो पास्ट लाइफ का कनेक्ट होना ज़रूरी है, और एक ओल्ड सोल को ही लोग ज़्यादा कनेक्ट करें, उससे ही कनेक्ट हो पाते हैं ओल्ड सोल से, क्योंकि ओल्ड सोल के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा वाइज भी है क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो यूर एन ओल्ड सोल, आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स इस अर्थ पर बिताई है। तो कभी आप राजा भी थे और कभी प्रजा का पार्ट भी आप बने थे। किसी ज़माने में, किसी लाइफ टाइम में यू वर द किंग, और किसी ज़माने में यू वर ऑल्सो पेजेंट, यू वर ऑल्सो समवन जो डे टू डे नॉर्मल वर्क करता था, और किसी लाइफ टाइम में आप राजा भी थे या एक रॉयल फैमिली के भी पार्ट थे। तो मतलब आपने हर चीज़ एक्सपीरियंस करी है, पॉवर्टी भी एक्सपीरियंस करी है, रिचनेस वेल्थ भी एक्सपीरियंस करी है। तो यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, और हर वर्ग की आत्मा के साथ, हर वर्ग के पर्सन के साथ आपके कनेक्शंस हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये कहीं ना कहीं आपने उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन
उनके साथ आपका रहा है। तो इस लाइफ टाइम में, अब इस लाइफ टाइम की हम बात करते हैं, पास्ट की बहुत होगी, अब इस लाइफ टाइम में वही लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे, लिटरली। और क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप सप्रेस्ड फील कर रहे थे, आप गिरा हुआ डाउन महसूस कर रहे थे, और यही लोग आपको अपलिफ्ट करने के लिए आने वाले हैं जीवन में। 1 year from now, you're going to be celebrating because you're going to complete maybe 1 million subscribers or followers. Like, you will have certain fan following in the next 1 year. You're going to create content on YouTube or Instagram, या फिर आप दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें। आप एक पॉलिटिशियन बनते हैं और एक ही साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं उस फील्ड में ही। साइलेंस कार्ड भी है जो कि ये शो करता है कि आप साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट रहकर मन से आप उन आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनके साथ आप कभी पहले थे, एंड स्पेशली जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन था। आप उनको कहीं ना कहीं अपनी पावर ऑफ साइलेंस से, अपनी मनोस्थिति से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ग्लोब पर बैठकर एज अ सोल आप अपनी बॉडी छोड़ विजुअलाइज करते हैं ये चीज़ें। आप ग्लोब पर बैठते हैं और उस हर आत्मा को कहते हैं कि आओ और मेरे साथ रहो, मेरे साथ आओ। जो मेरे साथ की थी वो आत्माएं मेरे साथ आएँ, वो मेरे को सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो ऐसे कई आपके ग्रुप बनने शुरू होते हैं, बड़ा वो आपका ग्रुप बन जाता है, क्योंकि आप कभी एक बड़े राजा थे। राजा तो बहुत तरीके के होते हैं, कोई बस छोटी सी जगह का राजा है, कोई बहुत बड़ी जगह का राजा है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कहते तो अपने आप को भारत का सेवक है, पर ऑलमोस्ट हर भारतीय नागरिक उनको एक भारत के राजा की तरह देखता है। उसी तरह यूएस के राजा यानी प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। आज की डेट में यूएस के प्रेसिडेंट चाहे डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी हैं, जैसे भी, स्टिल ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो यूएस के राजा है, क्योंकि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। पर जैसा अभी हम बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर विल चेंज, इट विल चेंज सून। और वो वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होता है तो अभी यूएस राजा है तो भारत राजा बनेगा, यानी भारत की हाँ या ना बहुत मैटर करेगी, जैसे यूएस की हाँ या ना मैटर करती है। ये वर्ल्ड ऑर्डर नया बनेगा, अभी नेक्स्ट 10 years में ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं आई जस्ट वांट टू से कि आप अपने फील्ड के राजा बनेंगे नेक्स्ट 1 year फ्रॉम नाउ। आपके फील्ड के लोग, आपके लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। बिगिनिंग्स का कार्ड जैसे नंबर 7 का कार्ड, नंबर 7 केतु का एलिमेंट है, केतु का नंबर है। केतु हाईली स्किल्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यू आर गोना बी अ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल पाइल नंबर 3। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल सेट ज़रूर होगा, स्पेशलाइजेशन ज़रूर होगी। आगे चल के पीएचडी करेंगे, ऑलरेडी पीएचडी कर रहे होंगे। हाईली स्किल्ड, अगेन डिग्री अगेन मैटर समटाइम एंड समटाइम डज नॉट। तो आई वांट टू से कि आप डिग्री हो ना हो, एक हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल होंगे। और क्योंकि केतु शिशु को, एक बच्चे को, बेबी को, इनफैक्ट बच्चा भी नहीं बेबी को रिप्रेजेंट करता है, तो इट डज शोज कि आपने एक नया जन्म लिया है और इस जन्म में आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बड़े हो गए हैं। एंड नाउ यू आर एट अ स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पर आप अब वो एक्ट करेंगे जो आपकी सोल एक्ट करने के लिए आई थी। अब आपने मतलब अपना बचपन गुजार दिया है एंड ऑल, नाउ इट्स अ टाइम टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। पाइल नंबर 3, यू गाइज आर एन अडल्ट। चाहे आप एक टीनेजर ही क्यों ना हो, आप एक अडल्ट हो, ये आपकी एनर्जी दिखा रही है। ऑलराइट, तो अब आप वो एक्ट करेंगे, वैसा करेंगे जैसा ऐसा आप करने आए हैं। ऑलराइट, अब आपको वो बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता जो आप बनने के लिए आए हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले, पाइल 3 1 year फ्रॉम नाउ, वी आर वॉरियर। यस, it says strength, skill, discipline, toughness of will, heroism, सेल्फ सेक्रीफाइस इन कॉन्करिंग द ईगो। तो आप ईगोलेस होते हैं 1 year फ्रॉम नाउ। ये काम भाई ये तो छोटा है, ये तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ईगोलेस होते हैं, आप अपनी ईगो को ही कॉन्कर करते हैं। ऑल राइट, एंड यू आर द वॉरियर। जैसे राजा एक जंग पर जाता है, वो अपने राज्य के लिए, चाहे हारे जीते जो भी, वो जंग पर जाता है। तो उसी तरह पाइल नंबर 3, आप में भी वो जंग वाला करेज है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर गोइंग ऑन अ वॉर, बट आई जस्ट वांट टू से आप करेजियस सोल्स हैं।
आप वॉरियर काइंड ऑफ सोल्स है, क्षत्रियपना आपके अंदर है कि अगर कोई चीज़ मिली नहीं तो उसको झपट लो या उसको लड़ लो, उसके लिए उसको पा लो। मगर हमारा मेन गोल ये है चीज़ों को पाना। आपका कहीं ना कहीं मेन गोल यही है, चीज़ों को पाना। वो जैसे मर्जी पाओगे, आप पर पाओगे, चाहे लड़के पालो। तो वॉरियर एनर्जी आपके अंदर है। मैनी ऑफ यू कैन बी लॉयर्स, मैनी ऑफ यू कैन बी द पीपल जो शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस इन देयर करियर, जैसे एक डेंटिस्ट, जैसे एक डॉक्टर। ऑल राइट, मैनी ऑफ यू कैन बी एथलीट, स्पोर्ट्समैन, एथलीट। जैसे इवन स्पोर्ट्समैन भी दूसरों को बहुत इंस्पायर करता है, तो सम ऑफ यू कैन ऑल्सो बी स्पोर्ट्समैन. Then we have the damsel. It says understanding the nature of healthy romance inspire you to rely on yourself. So it does shows that you are that person 1 year from now जो दूसरों को सपोर्ट करता है, दूसरों के जीवन में एक उमंग उत्साह पैदा करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, दूसरों के स्ट्रेस में आप उनकी somehow some way मदद करते हैं. And that's why people love you. That's why people want to be a part of you, will want to help you out because you help them out in their darkest of times. You are that पर्सन जो कि उन लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आता है, एक पॉजिटिव बदलाव लेकर ही आता है. यू आर दैट पर्सन. 1 year फ्रॉम नाउ आप वो इंडिविजुअल हैं जो डरते नहीं है, शर्माते नहीं है, शायद तो बिल्कुल भी नहीं है. All right, we have the desire card. 1 year from in the next 1 year जो आपकी hopes, wishes, desires है, materialistic hopes, wishes, desires है कि मेरे को दुनिया में इस करियर में आना है, मेरे को बहुत सारे लोगों की मदद करनी है. अगेन आपका करियर कुछ ऐसा ही है जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद होगी. और आपका डिज़ायर ये है कि कि मेरे को जो है एक अच्छा लाइफ दूसरों को प्रोवाइड करना है. कहीं ना कहीं फिलैंथ्रोपिस्ट आप ज़रूर हैं, नेचुरल फिलैंथ्रोपिस्ट आप ज़रूर हैं. ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग 1 year फ्रॉम नाउ. कई NGO से भी आप जुड़ेंगे, कईयों की सेवा भी आप करेंगे, कईयों को हिम्मत आप देंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन थ्रू सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने से, या लिटरली आप NGO से जुड़ते हैं, आम आदमी के लिए कुछ करते हैं, एक पॉलिटिशियन बनते हैं. देन वी हैव 2 of Pentacles कार्ड. सो 2 of Pentacles केम फॉर योर लिविंग एरिया, कि कहाँ पर आप जी रहे हैं 1 year फ्रॉम नाउ. पाइल नंबर 3. सो मे यू मे लिव नियर सम वाटर बॉडी, सम ओशन, रिवर, स्ट्रीम. ऑल राइट, एंड यू गोना ट्रैवल अ लॉट 1 year फ्रॉम नाउ. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. You are going to experience different state, city, country, different culture, cuisine. All right, 2 of Pentacles यहाँ ये शो करता है कि you are going to live at a place जहाँ nature का बहुत ज़्यादा beauty होगा. All right, something more. We have the tower here. You may live in a high-rise building. राहु का एलिमेंट है, राहु high-rise buildings को represent करता है. So high-rise यहाँ पर high-rise building में आप रहे. Even tower कार्ड ना पाइल नंबर 2 में भी आया था. सो इफ़ यू हैव एनर्जी डू गो वॉच पाइल 2 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस होगी. उसमें थंडर बोल्ट कार्ड आया था जो कि टावर वाली एनर्जी ही होती है. वहाँ पर भी ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी. तो पाइल नंबर 2 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे. सो डू गो वॉच पाइल 2 एज वेल इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी. बट या विद द टावर एलिमेंट हेयर डज शोज कि आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहेंगे. ऑल राइट, एक जैसे ना अगेन हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, इवन एक्टर एक्ट्रेसेस को भी लोग बहुत फॉलो करते हैं. वो भी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस को हमारे बेंड करते हैं, मोल्ड करते हैं. तो आप हाई राइज बिल्डिंग में रहेंगे. लिटरली यहाँ पर ना मोहाली में, जो पंजाब में है मोहाली, तो यहाँ पर होमलैंड करके एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है. और वो जब बना था बड़ा, सभी कह रहे थे बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर तो एलीट लोग रहेंगे, है ना. तो वहाँ पर आज की रेट में, अब तो काफ़ी साल हो गए अब होमलैंड को बने हुए, इन बिल्डिंग्स को, इन अपार्टमेंट्स को बने हुए. तो यहाँ होमलैंड में जो है आपके जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट जब वो थे कभी, वो लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो आप टीवी में एक्ट्रेसेस डेली सोप के देखते हो वो रहते हैं, पंजाबी जो वो हैं सिंगर्स हैं उनका घर यहाँ है. तो हाई राइज में है होमलैंड, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग है. तो राहु वाली एनर्जी है, और राहु सोशल मीडिया की एनर्जी है, राहु मीडिया की इन जनरल एनर्जी है, टीवी, यूट्यूब, इनकी एनर्जी है. तो मासेस से जो लोग जुड़ते हैं ज़्यादा,
या जो लोगों का कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्रीज से है, लेन देन पैसों का या कनेक्शन है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं. मुंबई में ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग है, और लोग उन लोगों का कनेक्शन जो मुंबई में रहते हैं वो बहुत सारी जगह है उनका कनेक्शन. और राहु जो है बहुत सारे पैसों को भी रिप्रेजेंट करता है. जब वीनस के साथ जुड़ जाए तो बहुत सारे पैसे देता है. तो दैट्स वाई मुंबई एक बहुत ज़्यादा रिच वेल्दी है मनी वाइज. तो इवन जो होमलैंड में लोग रहते दे आर ऑल्सो रिच एंड वेल्दी, बट दे ऑल्सो नीड कि हमें प्रोटेक्शन भी मिले, सेफ्टी भी मिले, है ना. तो आप खुद 1 ईयर फ्रॉम नाउ एक हाईली प्रोटेक्टेड सेफ जगह पर रहोगे. सेफ्टी आपका नंबर 1 बनेगा कि हाँ हमें एक सेफ जगह रहना है. चाहे हम हाई राइज बिल्डिंग में रह लें, थोड़ा शायद छोटा हो फ्लैट अपार्टमेंट, पर हम एक सेफ जगह पर रहना चाहते हैं. सेफ्टी विल बी योर प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ होम. एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ सेफ्टी बहुत होगा, एंड मोस्टली हाई राइज में रहेंगे. ये यहाँ नजर आए. राहु का एलिमेंट है. वीनस राहु का कंजंक्शन, वीनस राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट पाइल नंबर 3. Something more about the career part. So we have the temperance here. Temperance, as we see, light and dark. यहाँ पर भी वही बिजली चमक रही है, खड़क रही है. सो यहाँ करियर वाइज आई सी कि आप जो है सभी वर्ग के लोगों से जुड़ेंगे अपने करियर में. मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोग जो बहुत अच्छा पेचेक जिनको मिलता है, सभी टाइप के लोगों से आप मिलेंगे जुलेंगे. ऑलराइट. टेम्परेंस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस 1 ईयर फ्रॉम नाउ आएगा. एक किसी तरीके के प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट भी बनेंगे अपने करियर में. स्टार कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है करियर वाइज कि करियर में बहुत सक्सेस पाएंगे, करियर में एक चमकता सितारा बनेंगे. जैसे एक स्टार बनेंगे, जैसे एक्टर एक्ट्रेस को कहते हैं ना, ये तो स्टार है जी, इंडस्ट्री की स्टार है. इसी तरह आप अपने फील्ड के स्टार होंगे, दी स्टार. Alright, you are going to be the highest person, highest authority in your career field. You will be very famous in your career field. People will really support you. आपका reputation society में बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा. About your money, we have Ace of Cups. Ace of Cups बहुत अच्छा कार्ड है मनी को लेकर, क्योंकि कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है, तो हम कैश फ्लो, लिक्विड मनी कहते हैं. तो जो पैसे का एक फ्लो है वो यहाँ पर दिख रहा है. पैसे का फ्लो, बस पैसा एक जगह रखा नहीं हो, उसका फ्लो हो रहा है. आप उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे आपको अपने काम के कारण मिल रहे हैं, तो आप मनी वाइज बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं. हेल्थ के लिए अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वी हैव द लवर्स फॉर हेल्थ. सो लवर्स कार्ड बहुत अच्छा है हेल्थ को लेकर, बिकॉज इट डज शोज मी दैट यू गाइज आर गोना बी लव्ड बाय योर बॉडी एज वेल. यू गोना ट्रीट योर बॉडी रियली नाइसली. जैसे हम अपने लव्ड वंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसी तरह आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीट करें. यानी उसे अच्छा खाना दे रहे हैं, उससे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसे फिट एंड फाइन रख रहे हैं. बिकॉज आपकी सोल को ये पता है कि अगर मेरा ये रथ खराब हो गया तो मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगी. तो ये बॉडी एक रथ है आपके सोल के लिए. ऑलराइट. और आपकी सोल इस रथ को, इस बॉडी को चलाती है. तो बॉडी वाइज फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो दिस थिंग. तो बॉडी आपकी बहुत फिट एंड हेल्दी फाइन है. फिर ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ के लिए आए हैं. ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये शो करते हैं many of you, not just some of you, but literally many of you will get married 1 year from now. Literally this is going to happen, and this thing was in your mind for a long time. You guys wanted to get married because you felt कि मेरा कल्ले तो गुजारा नहीं है. चाहे सिंगल रहना जितना मर्जी पीसफुल हो, जितना मर्जी अच्छा हो, बढ़िया हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू बी अलोन. आई वांट टू हैव अ फैमिली, आई वांट टू हैव चिल्ड्रन, आई वांट टू बी सराउंडेड विद पीपल, द पीपल जो मुझसे बहुत ज़्यादा वाला स्नेह प्यार करते हैं. तो समहाउ मेनी ऑफ यू आर लिटरली गेटिंग मैरिड 1 year from now, and it's going to be a big fat wedding, literally. 4 of Wands बिग सेलिब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है. ये वाला 4 of Wands कार्ड बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है. एंड मैरिज इन इंडिया इज़ अ बिग सेलिब्रेशन, अ बिग वन. सो इट डज शोज कि एक बड़ी सेलिब्रेशन है और बड़ा मंडप होगा. इनफैक्ट 4 of Wands मंडप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. तो मंडप विल बी बिग, क्वाइट बिग. ऑलराइट. एंड इट शोज मी के एक रिजॉर्ट में जो है ये
मैरिज होगा, एक बहुत बड़ी एरिया में ये मैरिज होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे उसमें, ऑलराइट। क्योंकि अगेन यू विल फील लाइक कि अगर मैंने इस इंडिविजुअल को नहीं बुलाया, उस इंडिविजुअल को नहीं बुलाया तो नाराज़ हो जाएंगे, उनका आना बहुत ज़रूरी है, तो द लिस्ट इज़ गोना बिकम क्वाइट बिग। एंड डोंट वरी, यू विल बी एबल टू अफोर्ड योर मैरिज। कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिज में अच्छा खासा पैसा खुद लगाओगे एंड यू विल बी एबल टू अफोर्ड योर मैरिज। एंड समहाउ इन योर हेड फर्स्ट यू वांटेड अ स्मॉल वेडिंग ओनली, बट देन यू आर लाइक नहीं, मैरिज हम एक ही बार करेंगे तो हम बहुत अच्छे से ही करना चाहते हैं वो मैरिज, ऑलराइट। आई एम नॉट दैट। यू मे फील अर्लियर यू फेल्ट कि हम तो एक स्मॉल वेडिंग ही करते हैं, या अगर मेरे को शादी करनी है तो इट्स गोना बी अ वेरी इंटीमेट मैरिज, बट you know 1 year from now you're like I want to invite this person, that person, or completely an extroverted person. तो जैसे राजा की जब मैरिज होती है जिस तरीके से, तो उस तरीके से आप अपनी मैरिज करना चाहेंगे, ये यहाँ पर दिखता है. But I want to tell you something, that your partner can be someone जो थोड़ा introverted in nature हो, शांत हो, introverted हो, and that's why you're marrying them because you feel कि I am a chaotic individual, I am a full chaos. सो आई वॉन्ट समवन जो मेरे जैसा तो एटलीस्ट ना हो, वो इंट्रोवर्ट हो या वो काम हो, धीरे धीरे बोलता हो या बोलती हो, धीरे उनका थॉट प्रोसेस हो, सो दैट उनकी कंपनी में आके मेरा मन भी शांत हो जाए. तो ऐसे इंडिविजुअल से समहाउ यू विल गेट मैरिड. अगेन ऐसे इस इंडिविजुअल का जो है मून जो है अच्छा प्लेस्ड हो, मतलब राहु केतु से ऐसे इंडिविजुअल का मून पीड़ित नहीं होगा. ऑलराइट, राहु केतु इस इंडिविजुअल के मून के ट्राइन में नहीं होंगे या कंजंक्ट नहीं होंगे, ऐसी प्लेसमेंट वाला होगा ये पर्सन. या मून कैंसर साइन का हो, दिस कैन हैपन. स्पेशली राहु केतु जब मून के साथ ना हो तो ऐसे इंडिविजुअल का अच्छा पीस ऑफ माइंड होता है. जुपिटर मून का कंजंक्शन हो, जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. ऑलराइट, तो ये प्लेसमेंट इस इंडिविजुअल के चार्ट में हो सकती है. या आपका धारा कारक प्लैनेट पाइल नंबर 3 मून हो सकता है, या आपके स्पाउस का आत्मा कारक प्लैनेट मून हो सकता है, जो कि ये शो करता है कि आपके स्पाउस बहुत बड़े फूडी होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, गोलू मोलू से दिखेंगे, वेट वाले होंगे क्योंकि खाना बहुत खाते हैं, और चिड़चिड़े नहीं होते कभी भी, गोलू मोलू से होते हैं. गोलू मोलू लोग चिड़चिड़े वैसे भी नहीं होते, पतले लोग ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इन गोलू मोलू लोगों के अंदर जुपिटर का तत्व ज़्यादा होता है. गुरु, जुपिटर यानी गुरु, हिंदी में जुपिटर को गुरु कहते हैं. तो शांत रहते हैं, आराम से हर चीज़ का जवाब दे देते हैं, जितनी मर्जी बार आप सवाल पूछ लो ऐसा इंडिविजुअल इरिटेट फ्रस्ट्रेट नहीं होता. तो गोलू मोलू लोगों की ये खासियत होती है. तो ऐसे आपके पार्टनर होंगे. ऑलरेडी जुपिटर का तत्व अच्छा होगा, इस वजह से वो वेल्दी होंगे, शांत रहने वाले इंडिविजुअल होंगे, और खाएंगे पिएंगे अच्छे से, घी बटर अच्छे से खाएंगे, और मतलब खाने के शौकीन होंगे, गोलू मोलू से होंगे, ज़्यादातर शांत रहेंगे. अगेन उनकी बॉडी का जो प्रकृति हो वो अगेन कफ प्रकृति के लोग होंगे आपके पार्टनर. कफ प्रकृति के लोग यूजुअली शांत होते हैं, गोलू मोलू ज़्यादा होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है. अगेन जुपिटर का तत्व अच्छा होता है ऐसे लोगों में. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप है, सो 1 year from now you guys can get married. And if you are already married, so it can happen that your relationship with your partner, it tremendously improves, and you guys 1 year from now may travel a lot with your partner. ऑल राइट, एंड यू गाइज हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. और आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा स्नेह प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से कंफर्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. एंड वी हैव हाई ऑनर. आई टोल्ड यू पाइल नंबर 3, यू गाइज आर द पीपल जिसको हाई ऑनर मिलेगा. तभी मैंने कहा सम ऑफ यू कैन बी पॉलिटिशियंस, सम ऑफ यू विल बिकम एन इन्फ्लुएंसर. तो मतलब आपको लोग, जैसे कोई जब इंपॉर्टेंट पर्सन रूम में एंटर होता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में. उसी तरह लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे 1 year from now. यू विल बी दैट पर्सन जिसका हाई ऑनर होगा. 10 तोपों की, 7 तोपों की सलामी आपको मिलेगी लोगों से. एंड वी हैव डिस्टेंट हॉरिजोन्स. सो दिस शोज मी दैट आप कहीं ना कहीं अगेन 1 year from now बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे. एंड यू आर गोना बी दैट पर्सन जो यू नो जेल अप ईजिली हो पाता है दूसरों से, दूसरों को ओपरा नहीं फील कराते, दूसरों का आप अपनापन समहाउ फील करा पाते हो. आप में ये क्वालिटी है. एंड वी हैव द मैसेज कार्ड. इट डज शोज मी दैट 1 year from, अगेन वी हैव नंबर 7. ये वाले कार्ड में भी जो सबसे पहला कार्ड था, चाहे आपने इस
पाइल को जैसे भी पिक किया हो, अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक किया हो, इंटुइटिवली पिक किया हो, इस न्यू बिगिनिंग वाले कार्ड में भी नंबर 7 था, यहाँ पर भी नंबर 7 है. सो इट डज शोज मी यू आर गोना बी हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, यू आर गोना बी दैट पर्सन जिसके पास कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स हो सकता है. तो आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो. मरकरी केतु कंजंक्शन, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि शो करता है दैट यू आर गोना बी अ वेरी गुड राइटर, कैन इवन पब्लिश अ बुक 1 ईयर फ्रॉम नाउ. कुछ स्किल्स ऑफ हैंड्स आपके पास होगा, हो सकता है आप म्यूजिक प्ले करते हो, गाना प्ले करते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो अपने हाथों से. एंड विद द मैसेज कार्ड इट डज शोज दैट यू आर गोना बी दैट पर्सन जो दूसरों से बहुत कम्युनिकेट करेगा, दूसरों से बहुत बातचीत करेगा. ऑलराइट. और इट डज शोज विद द फोन हेयर विद द लेटर की वही कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कोई मैच नहीं कर सकता. आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, दूसरों को परज्यू बहुत अच्छे से आप कर पाते हो, दूसरों से चीज़ें बहुत जल्दी मनवा पाते हो, लॉजिक उनको देते हो या जैसे मर्जी, मतलब आप दूसरों से अपनी बात मनवा पाते हो. और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. वी हैव द नंबर 17 गिफ्ट कार्ड. सो दिस अगेन जुपिटेरियन एलिमेंट यहाँ पर है. जुपिटर रिप्रेजेंट द येलो कलर, जुपिटर रिप्रेजेंट्स ब्लेसिंग, गिफ्ट्स इन आवर लाइफ्स. सो इट डज शोज मी विद द गिफ्ट कार्ड कि जुपिटर एलिमेंट आपके अंदर भी बढ़ रहा है. अगेन आप किसी तरीके के प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट बनेंगे. 1 year from now you may gain you may have a perfect body weight. All right. This also shows me that with the gift card कि लोग आपको बहुत सारे गिफ्ट दे 1 year from now. Of course जब मैरिज होती है तो बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, है ना. बट जैसे और भी ओकेजन्स पर लोग आपको गिफ्ट देना चाहें, जब हम किसी पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो फूलों का गुलदस्ता उनको देते हैं, है ना. तो ऐसे गिफ्ट्स आपको बहुत सारे लोग दें या भेजना चाहें, यू नो, दिस विल ऑल्सो हैपन. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 3. एक और चीज़ वैसे I want to pull one more card. I feel कि कुछ और रह गया है. pile number 3. 1 year from now we have success. Yeah. Oh my god, success card pile 2 में भी था. Again I'm saying the same thing कि different deck से था उनको success card, आपको एक different deck से है, but do you know listen to pile 2 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे. You know the key to success, you have the key to success and you're going to open the door of success for yourself. तो success 1 year from now जिस भी चीज़ में आप चाहते हैं आपको मिलेगी. You're going to become a successful person 1 year from now, क्योंकि आप बहुत अच्छे effort कर रहे हैं in the next 12 months, जिससे आपको 1 year from now you will feel that yes, I've become a successful person. So yeah, your parents are going to be very proud, you're going to be proud of yourself. All right, so this is happening for you. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 3. Astrologically देखें तो जुपिटर फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में होगा. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, या सैटर्न 9th हाउस में हो, जिसको अगेन धर्मादि कर्मादि हो कहते हैं. ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी. जुपिटर, सैटर्न या फिर मार्स, इनमें से कोई प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होंगे हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. मून 7th हाउस में हो सकता है, 7th हाउस ऑफ मैरिज में हो सकता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करे. मून इन द 7th हाउस, मून धारा कारक हो सकता है आपके स्पाउस के चार्ट में, मून आत्मा कारक हो सकता है. Sign of Aries, sign of Cancer, sign of Gemini, sign of Capricorn, sign of Pisces, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. जेमिनी में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर साइन में, पुष्य, श्लेषा. फिर केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. फिर पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astrotarot reading, nakshatra only reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Not knowing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.